अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम एहसन खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम मैम। वेलकम सर। तो वी आर लाइव। थोड़े पार्टिसिपेंट्स हमें ज्वाइन करें फिर बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस 3 days बूट कैंप ऑन एडीआर, जिसमें हम पर्टिकुलरली नेगोशिएशन, मीडिएशन और आर्बिट्रेशन में पर्टिकुलरली कमर्शियल एंड इन्वेस्टमेंट आर्बिट्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड ईच पर्टिकुलर लेक्चर विल बी फॉलोड बाय द रिलेटेड मूट कॉम्पिटिशन। इस वर्कशॉप्स को बेसिकली ऑर्गेनाइज करवाने का मकसद ये था दैट खनसा एंड आई along with सर, with the guidance of सर गुलाम मोहम्मद, वी हैड एन आइडिया कि पाकिस्तान के अंदर जो वोटिंग, तो आपने काफ़ी ज़्यादा देखी होगी, मॉक ट्रायल्स का भी कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, बट पाकिस्तान के अंदर जो एडीआर से रिलेटेड जो मूवमेंट कॉम्पिटिशन है उनके ऊपर अभी इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है। तो वी हैव सीन कि पाकिस्तान के अंदर एफडीआई मूव आया है, अभी भी इस मूव के पहली मरतबा पाकिस्तान के अंदर राउंड हुए हैं। तो वी आर प्लानिंग कि इसी तरीके से मीडिएशन एंड जो नेगोशिएशन है उसके ऊपर भी हमारे पार्टिसिपेंट्स को, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको अंडरस्टैंडिंग होना वो डालती है। तो इसलिए वी अरेंज दिस कंपटीशन विद वेरी स्टीम स्पीकर्स ऑन बोर्ड, जिसमें से आज हमारे साथ मिस सहारा और सर गुलाम मोहम्मद जो है वो मौजूद है। हंसा, ओवर टू यू। Thank you, Asan. Welcome, Miss Sarah, Sir Gulam. We are really honored to have you. And now I would like to formally introduce Miss Sarah Tarar. So, Miss Sarah Tarar is a consultant mediator at the Office of Compliance Advisor Ombudsman World Bank Group. Also, she is the CEO of ADR ODR International Pakistan and the Director of International Center for Dispute Resolution Lahore. In addition to that, she is the resident representative Pakistan for ADR ODR International UK and a part of their international training faculty. Moreover, she is a digital dispute resolution specialist at DDSR UK with training as an accredited civil commercial mediator, negotiator, international commercial arbitrator, and ODR specialist. Along with that, she is on the panel of mediators of ADR ODR International UK and of the Singapore International Mediation Institute. In addition to that, she is an associate chartered institute of arbitrators. Furthermore, Ms. Sara Tarar is the Dean of International College for Legal Studies, a partner at Exportis Legalis, and an advocate of the High Courts. We are really honored to have Ms. Sara Tarar here. Ma'am, please start your session now. Thank you so much for your time and presence here. Thank you so much, Kansar. Thank you so much for this invitation. I think workshops like these are very important for the youth, of course, but especially in the current structure and the current landscape. Because ADR की very quick movement हो रही है, there's a lot of awareness, and I think this is the time is right कि सबको समझ आए क्या है and how we can utilize, right? If you give me a minute, I'm just going to share my presentation so that हम इसको सही तरीके से कर सकें. Are you able to see it? Yes, ma'am. It's visible. Okay. So since you've already introduced me, I'm going to quickly jump to the next main slide. हम इस वक्त बात करें, we're talking about alternative dispute resolution, जिसको commonly ADR कहा जाता है. And it is very briefly, if you were to explain, because we are talking about negotiation, mediation, later you're also going to be talking about arbitration. What is ADR? Okay, ADR is any procedure where you're settling a dispute outside a court, right? So the courtroom is not involved.
And the standard procedures and the requirements for evidence that are involved in the court, those are not involved. There are many kinds of ADR, but the three principles that ones that we talk about are mediation, negotiation, and arbitration. My focus is going to be on mediation and negotiation, but I'm going to define all three for everyone's benefit. So negotiation is essentially a process where two two or more parties in a conflict or dispute reach a settlement between themselves that they both agree on. And these are reached through discussions between the parties or their representatives. This is without an involvement of a third party. So there's no third party which is trained. The negotiators might be trained, and we're going to discuss this overlapping or the difference, both of them, while we're having the discussion on mediation. But essentially, there's no third party trained person involved. Now, if we were to talk about arbitration, again, yes, parties are opting out of the court system, but there's a neutral third party involved. But the third party in this case is the decision maker, right? And there are some rules involved without getting into the nitty-gritties of it. The focus today is, however, mediation. And I think this is the most important ADR that we have currently. Now, I'm going to start off with the definition we have, and this is from the European Code of Conduct for Mediators. It's a very general definition, can be adapted to all cultures. इसमें कोई ऐसी मखसूस बात नहीं है that it can only be a European code of conduct for mediators. अक्सर लोग internationally इसी को apply करते हैं. So essentially, it is a process where two or more parties agree to the appointment of a third party mediator, called the mediator, to resolve the dispute by reaching an agreement, and that is without adjudication. And let me clarify, this third party is basically a facilitator. This third party is not a decision maker. So it's not a person जो आपको बता रहा है, okay, I've listened to everything and I'm going to be deciding everything for you. It doesn't work like this. Now, before I move on, I'm going to be touching upon the role of mediation. किसका पाकिस्तान में या generally, when should mediation be initiated? For instance, should it be in the middle of a lengthy court battle? Should it be before you go to the court? We do understand it's outside the court system, but what is the ideal time for it? Now, some people during the course of the case at the court realize there's something called mediation. With proper awareness, you'll realize the court mein cheez chali jati hai, things are already very dirty. You are not in that state where you want to sit and talk to each other. The best time for mediation is before you start anything in the court, because जब इतनी चीजें खराब हो जाए, आप बैठ के बात नहीं कर सकते एक दूसरे से. So essentially, आप पहले start करेंगे. दूसरी बात ये है, why do you need a person, a third person, a facilitator, जो बैठ के आपके दरमियान में बात करा रहा है? आप खुद क्यों नहीं कर सकते? Why? Because there is a breakdown in your relationship, and you're being given a chance, if you choose to opt for it, to connect at a human level. क्योंकि कोर्ट में ह्यूमन लेवल की बात नहीं होगी, वहां लीगल रूल्स हैं, एविडेंस है, उसमें देखा जाएगा पार्टीज का जो पर्सपेक्टिव है, दैट एसेंशियल एलिमेंट इज मिसिंग, जो कि हमें लिटिगेशन में भी नहीं मिलता, एंड आई थिंक इवन आर्बिट्रेशन में भी नहीं मिलता. सो आप कह रहे हो, चांस दे रहे हो कि अगर रिलेशनशिप आपकी डिस्ट्रॉय हो रही है, आप उसको सेव कर सकते हैं. एंड मोस्टली व्हेन यू आर कमिंग फॉर मीडिएशन, यू लुकिंग टू सेव अ रिलेशनशिप. एंड मीडिएशन के बाद अक्सर लोग रिलेशनशिप रखते हैं रादर देन ना रखें. एंड इसमें मैंने अगर आप स्लाइड देखें, आप देखेंगे कितने डिफरेंट एरियाज हैं जिसमें मीडिएशन प्रैक्टिस हो सकती है. सो वेदर यू टॉकिंग अबाउट सिविल एंड कमर्शियल, वेदर यू टॉकिंग अबाउट फैमिली, सक्सेशन, वर्क प्लेस, एंड आई विल एक्सप्लेन सम ऑफ देम where I feel it's not self-defining. Peer mediation है, community mediation है, और political mediation, right? अब आप सोचें, फैमिली मीडिएशन में आप एक दफा कोर्ट चले गए हैं, a lot of people don't want to go to court. ठीक है, थिंग्स आर वेरी प्राइवेट. कई दफा बच्चों के केसेस इन्वॉल्व होते हैं, फैमिली के अपने प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व होते हैं. यू डोंट वांट टू गो टू द कोर्ट, बट आपको जब पता ही नहीं है कोई और तरीका है, आपको यही पता है, फर्स्ट कर लें, व्हेन यू गो टू अ हॉस्पिटल, शायद आपने सर्जन के पास जाना है जिसने आपकी बॉडी की वो ऑर्गन निकाल ही देनी है या फिर उस पर काटा पीटी करनी है. यू विल नॉट गो टू अ जनरल फिजिशियन कि वो शायद मुझे ऐसी कोई दवाई दे दे जिससे मैं क्योर हो सकता हूँ, या प्रिवेंटिव मेडिसिन भी हो सकती. आपको पता ही नहीं तो आप नहीं जाएंगे.
So similarly here, if you know that mediation exists, आप पहले वहां जाएं, ट्राई करें टू सेव द रिलेशनशिप. कल को बच्चे इन्वॉल्व होते हैं एटसेट्रा. बट ऑल्सो आपकी सिर्फ इसमें बात नहीं हो रही, आप वर्क प्लेस की बात कर लें और आप बिजनेसेस की बात कर लें. बिजनेसेस डोंट वांट टू बी फाइटिंग विद ईच अदर. बिजनेसेस डू नॉट वांट कि हम लेंथी बैटल्स करें कोर्ट में और हमारा काम रुका हुआ है. And sometimes you don't want to, you want to have another contract with the same party perhaps. You don't want कि हमारी relations end हो जाए. So all you want is हम बैठें, इसको resolve करें and move on कर जाए. हम इधर ही फंसे ना रहे. But unfortunately वो court system में आपको मिल नहीं सकता क्योंकि there is a very specific mechanism जो जिसके through आप सारा ये कर रहे हो. So this is a chance to save your relationships, and a lot of parties choose to avail it for this reason. I talked about civil commercial mediation, family mediation की बात की. आपके succession के cases होते हैं. कई दफा workplace mediation है. You are with a lot of people at work. आप अपनी relationship spoil नहीं करना चाहते, and you don't necessarily want to leave the workplace. You want to stay there and work, but also don't want कि जो problems arise किए हैं, you also want वो किसी तरह solve हो जाए. तो again, workplace mediation is a very good idea. कम्युनिटी मीडिएशन है. अक्सर कम्युनिटीज में, और ये हमारे यहाँ नहीं है बट शायद हमारे यहाँ इनफॉर्मल लेवल पे कई सिस्टम्स वर्क कर रहे हैं जिनको हम इससे शायद कंपेयर कर सकते हैं. रॉन्गली और राइटली पर एक कंपैरिजन है. अक्सर कम्युनिटीज ने अपने सिस्टम क्रिएट किए होते हैं जहां वो अपने बड़ों के पास जाते हैं और रिजॉल्व कराने की कोशिश करते हैं. दिस इज नॉट एग्जैक्टली मीडिएशन, बट एटलीस्ट इट्स एन अटेम्प्ट एट समथिंग लाइक दिस. बट इफ यू वर टू फॉर्मली इंट्रोड्यूस मीडिएशन इन कम्युनिटीज, ये एक ज्यादा बेहतर तरीका होगा क्योंकि एक न्यूट्रल पर्सन बैठा आपको आपके पर्सपेक्टिव से चीजें सुनकर रिजॉल्व कराने की कोशिश कर रहा होगा. I missed out peer mediation on purpose. I'll discuss it right in the end. Political mediation तो स्टेट लेवल पे है ना. कंट्रीज आपस में मीडिएट कर रहे हैं अबाउट सच ग्लोबल इश्यूज जो शायद आपस में ना हल कर सकते हो. सो उसकी बहुत ही ज्यादा एक इम्पोर्टेंस है. पीयर मीडिएशन, व्हाई आई लेफ्ट इट फॉर द एंड, इज कि हमारे यहाँ स्कूल्स में ऐसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारी कोई ऐसी स्किल्स नहीं है जो स्टूडेंट्स को, जो बच्चों को सिखाई जाती हैं कि आपस में कोई इख्तलाफ हो तो उसको किस तरीके से हमने रिजॉल्व करना है. हमें सिर्फ सब्जेक्ट्स पढ़ा दिए जाते हैं. हमें ज्यादा डिबेटिंग स्किल्स करा दी जाती है, वो विच इज कंपैरेटिवली रीसेंट. मूटिंग उससे भी ज्यादा रीसेंट है, एमयूएन और रीसेंट है. ठीक है, बट दीज आर ऑल different things. These are not, I would say, yes, an aspect of your skill, but not a life skill. ठीक है, आपकी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन किस तरह होनी है हमें नहीं पता. हमें यही पता है कि अगर हमारी कोई लड़ाई होगी, हम किसी बड़े के पास जाएंगे, हम माँ बाप के पास जाएंगे, किसी टीचर के पास जाएंगे, एंड दे आर गोइंग टू से कि जी अच्छा आपकी इस बात पे लड़ाई हो रही है, ये जीत जाएगा या हार जाएगा, बिकॉज हमने हमेशा से सीखा ही है. Unfortunately, I think there's trouble with the internet connection, so I don't think you're able to see my presentation, but I'm going to try my best to, move on with it without the camera. But these are the problems जो आपकी आमतौर पे होती हैं, और peer mediation जो है वो आपकी फिर काफी help करती है in these things. And आप अगर examples देखें, US में काफी different states में use हो रहा है, एंड वहां बुलिंग के केसेस बहुत कम हो गए बिकॉज अंडरलाइन इश्यूज खत्म हो जाते हैं. स्टूडेंट्स को पता है कि हमारे में से एक स्टूडेंट है जो बैठेगा, वो ट्रेंड है और वो बैठ के हमारे इश्यूज आपस में रिजॉल्व कराने की कोशिश करेगा. सो आई थिंक एट ऑल लेवल्स दिस इज समथिंग विच कैन बी वेरी यूजफुल. नाउ इसमें मेन चीज होती है एम्पैथी के अराउंड सेंटर्ड है. ठीक है, आपके कई दफा क्लैश ऑफ ईगोज होते हैं. The kind of solutions, multiple solutions जो आपको इसमें मिल सकती हैं, जो आप one of the solutions is maybe you just want the other person to say that they are sorry. ये solution आपको कोर्ट में नहीं मिलेगी. It's a win or lose in court. What we are doing here is it's a win-win situation. दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ मिलेगा, दोनों पार्टीज के पर्सपेक्टिव से सोल्यूशन होगी जो दोनों को बेस्ट सूट करती है, विच इज वाई इसमें क्रिएटिव सोल्यूशंस होंगी जो कि कोर्ट में नहीं हो सकती, बिकॉज ऑब्वियसली आपका जो पर्सपेक्टिव है वो मिसिंग है, वो उसमें नहीं आ सक रहा. आपकी रिलेशनशिप भी प्रिजर्व हो रही है. सो विच इज वाई फील कि कई दफा कोर्ट में केस जाता है और कोर्ट्स फील कि ये तो बड़ा फ्रिवलेस केस है, हर दूसरा बंदा उठ के केस में कोर्ट ले आता है. तो थिंग इज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट पर्टिकुलर पार्टी, एंड मे बी दे डोंट नो दे हैव टू गो टू मीडिएशन. फिर आपका टाइम फैक्टर इसमें इन्वॉल्व है.
डू यू नो इंटरनेशनली मीडिएशन जो है, कंपेयरिंग, आप देखिए हमारे मोर देन अराउंड 2.3 मिलियन पेंडिंग केसेस हैं कोर्ट्स में पाकिस्तान के, मे बी मोर देन दैट. एंड इमेजिन द टाइम दैट इज स्पेंट इन ऑल ऑफ दीज. कितना आपका टाइम स्पेंड होता है, मे बी अवे फ्रॉम वर्क, मे बी अवे फ्रॉम फैमिली, द कॉस्ट फैक्टर विच इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस. आपकी इंटरनेशनली मीडिएशन आर डन इन जस्ट वन डे, just one day, unless it's a multi-party dispute. आपकी mediations एक दिन में हो जाती हैं. You're paid by the hour, which means you're charging by the hour, which means जो जितने सालों की lengthy battles चल रही हैं उससे तो कोई comparison ही नहीं है, ना तो cost factor का, ना तो time factor का. एंड कॉन्फिडेंशियलिटी आपकी अलग इसमें रहती है, बिकॉज यू साइन दिस कॉन्फिडेंशियलिटी अग्रीमेंट, और आप जो भी बात कर रहे हैं वो कहीं बाहर नहीं जाती. आपका कंट्रोल थ्रू आउट रहता है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वंस यू टेक समथिंग टू द कोर्ट, आपका कंट्रोल एलिमेंट खत्म हो जाता है, बिकॉज देन इट इज विद द कोर्ट. हियर you have the control throughout. It is you who is deciding that I'm at the table and I might choose to walk away if the solution does not suit me. Or because I'm at the table, I don't want to lose the seat of control. I'm going to continue and, find a solution जिसमें हम दोनों उसको बेनिफिशियल दोनों के लिए हो सके और हम उसमें मूव ऑन कर सके. और आपको एक सिंपल एविडेंस के बगैर, प्रोसीजर के साथ, एक फ्लेक्सिबिलिटी के साथ और ह्यूमन एलिमेंट के साथ आप इसको आगे सॉल्व कर सकते. अच्छा, दिस इज अ वेरी जनरल जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, बट ये सारी चीजें बेस्ड होती हैं इन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट में होता क्या है? जब हम मीडिएशन की ट्रेनिंग्स करते हैं, हम बड़ी डिटेल में नंबर वन समझते हैं डेफिनेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, डिफरेंट थियरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, व्हाट इज द साइकोलॉजी बिहाइंड कॉन्फ्लिक्ट, लोगों के किस किस्म के रिएक्शन होते हैं जब भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज करता है. मैं आपको एक डेफिनेशन दूंगी स्टीफन रॉबिन्स की, विच हु इज एन ऑथर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, वेरी वेल renowned. And the definition he puts forward is that conflict is a process that begins when one party perceives that the other has negatively affected or is about to negatively affect something that the first party cares about. So try to notice, ये बात नहीं हो रही कि आप एक स्टांस दे रहे हो कि जी वाकई ऐसा हुआ है. नहीं, आप कह रहे हो परसेप्शन है, where one party perceives that the other has negatively affected or is about to negatively affect something that the first party cares about. You care about something, आपकी परसेप्शन ये है कि दूसरा उसको नेगेटिवली इफेक्ट या तो कर चुका है या वो इफेक्ट करने वाला. अक्सर टाइम ये होता है, हम जब डिस्प्यूट रिजॉल्व कराने की कोशिश कर रहे होते हैं, हमें रियलाइज होता है कोई भी पार्टी गलत सही नहीं है, आधी इंफॉर्मेशन ही मिसिंग है या आधा पॉइंट ऑफ व्यू ही डिफरेंट है, और आपकी स्ट्रगल हो रही थी एंड ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू द अदर पर्सन इन इन व्हाटएवर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन यू गॉटन, कितना आपने रिवील करना है कितना नहीं, कि दिस इज व्हाट द अदर पार्टीज व्यू इज. एंड समटाइम्स वो चीज बहुत जल्दी समझ आ जाती है एंड यू थिंक कि ये तो बड़ी जल्दी रिजॉल्व हो गया. Sometimes cases are complicated because emotions are complicated, and sometimes you've been waiting, grudges build करते रहते हैं और टाइम नहीं मिल रहा होता है ना आपको वेंटिंग का ना किसी और चीज का, और वो बहुत ज्यादा बड़ी चीज छोटी सी चीज बड़ी बन गई होती है. तो कई दफा परसेप्शन को समझाने में आपको टाइम लगता है. एंड हम बड़ी सिंपल आई विश आई वाज एबल टू शो द वीडियो, बट सिंपल कुछ एक्सरसाइज हैं which I thought will be done in the shown in the workshop today. But sometime I don't know if you've seen, आप maybe you've come across, हम ऐसी images हमें देखने को मिलती हैं जिसमें एक इमेज है जिसमें एक तरफ से आपको वाज नजर आ रहा है, दोबारा आप देखते हैं आपको टू फेसेस नजर आ रहे हैं. ठीक है, these are different images जो हम साइकोलॉजी में भी यूज करते हैं, हम मीडिएशन. दिस इज अबाउट परसेप्शन. कई इमेजेस होते हैं जो आपको पहले क्या नजर आए बाद में क्या. ऐसा नहीं है कि आपको वो नजर नहीं आएगा जब कोई दूसरी पार्टी आपको बताएगी क्या है, लेकिन आपको शुरू में नजर नहीं आया. दिस इज द सेम विद परसेप्शन. किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में आपको पहले बात जरूरी नहीं समझ आए, दैट थिंग वाज ऑलवेज देयर बट यू कुडंट सी इट. somebody needed, somebody who has experience, somebody who has skills, who can go beyond whatever is bothering you and your emotions, help you see things which you can't see, and it happens to both parties. आप दोनों को बिठा कर ये करते हो. ये हमेशा ये नहीं होता दोनों को एक ही कमरे में हमने बिठा दिया जब वो एक दूसरे को मारने के लिए तैयार है. आप कई दफा समथिंग कॉल्ड शटल मीडिएशन, आप अलग अलग कमरों में बिठाते हो. कई ये तो हमें तो कई बार टाइमिंग्स देखनी पड़ती हैं कि जी एक टाइम पे ना आ जाए वरना मसला हो जाएगा. So you make them sit in different rooms,
You're talking to them. Sometimes the whole mediation is done that way, but sometimes in between you feel they're able to sit together. So you have to really see, are they able to sit together? इनके emotions अभी बहुत heightened तो नहीं है. And half the game in this is about actively listening and making the other party talk, which is why हम कई वर्कशॉप साइकोलॉजी रिलेटेड करते हैं, बिकॉज आपको पता होना चाहिए दूसरे बंदे ने बात कैसे करनी है, आपने कैसे सुननी है, और दूसरे को बुलवाना कैसे है, किस तरह के सवाल पूछने हैं. और अगर कोई ऐसी कोई अपनी ग्रीफ बताते हैं, कोई अपनी बहुत अपनी तरफ से ऐसी चीज जो बड़ी डिफिकल्ट है बताते हैं, तो उसको आपने रिस्पॉन्ड किस तरह करना है. और वो उसको नेगेटिव फ्रेम कर रहे हैं, तो आपने पॉजिटिव फ्रेमिंग उस चीज की किस तरह ले जानी है. एंड दिस इज वेयर यू ऑल्सो रियलाइज व्हाइल टॉकिंग टू पीपल. आप एक बंदे से बात करते हो, वो कहते हैं ऐसी चीज तो हुई नहीं, और दूसरे की मेमोरी में वो बड़ी फिक्स्ड है कि ऐसा ही हुआ है. एंड व्हाई डज दैट हैपन? whenever there are gaps, your brain is going to fill in those gaps. In absence of information, आपका brain gaps fill करता है. आप एक इमेज क्रिएट कर लेते हो, ये यूं हुआ होगा, और वो आपका फिक्स हो जाता है. आपको किसी ने कहा नहीं होता है, पर वो फिक्स हो जाता है. ठीक है. हम अक्सर एक एक्सरसाइज करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, जिसमें हम डिफरेंट सिचुएशंस दे देते हैं, तस्वीर दे देते हैं, एंड वी often say for instance, अगर हम बात करें, ऐसे you receive a call and you set out alone for the hospital, you were worried. अब मैं जब पूछती हूँ ना सबसे कि आप बताएं कि जी what do you think happened, कोई कहेगा SN is a student, ठीक है, कोई कहेगा SN is a doctor, somebody is saying कि it might be night and the SN is worried, somebody is saying hospital bills के बारे में परेशानी, somebody कोई कॉल आई है, somebody is in the different things जो लोग सोचते हैं. आपको एक ही सेट ऑफ इंफॉर्मेशन मिल रही है. व्हाई आर यू थिंकिंग डिफरेंटली? बिकॉज योर ब्रेन नीड्स टू कंप्लीट द पिक्चर. आपको वो गैप्स फिल ही करनी है, और वो गैप्स फिल होकर अगर उस बारे में बात ना हो, तो ओवर टाइम वो चीज इंट्रेंच्ड हो जाती है. एंड दिस इज वेयर योर एक्सपर्ट पर्सन इज गोइंग टू हेल्प यू. अच्छा, अब थोड़ा सा मैं यहाँ बात करूंगी अबाउट निगोसिएशन एज वेल, बिकॉज हम मीडिएशन की बात कर रहे हैं. हमने निगोसिएशन की डेफिनेशन तो कर दी है. मीडिएशन और निगोसिएशन का ओवरलैप क्या है, आप इसमें लिंक क्या है? हम मीडिएशन को अक्सर कहते हैं असिस्टेड निगोसिएशन, ठीक है, बिकॉज एसेंशियली द पार्टीज आर निगोशिएटिंग विद ईच अदर, बट दे आर नॉट एबल टू डू इट ऑन देयर ओन. तो एक न्यूट्रल पर्सन बैठ के उनकी निगोसिएशन करा रहे हैं. उसने खुद कोई उनको डिसीजन नहीं देनी, ना उनको बताना है आप यूं कर लें, ये कर लें. आप यू मेकिंग द पार्टीज का हमें कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ती है. फॉर इंस्टेंस द केसेस दैट आई डू विद द वर्ल्ड बैंक, हमारे कोई एक दिन में नहीं होते. इट्स अ वेरी डिफरेंट सेट ऑल टुगेदर टाइप ऑफ केसेस जो हम करते हैं. उसमें हमें पहले तो जो लोग हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ती है, कि इनको समझ आ जाए कि ये जो टूल्स हैं आपके डिस्पोजल पे, इनको यूज कैसे करना है. तो जिन लोगों को आदत है वो तो शायद एक दिन में करा लें, हफ्ते में मीडिएशन हो जाए. पाकिस्तान में से फैमिली केस मेरे पास आते हैं, मेरा हफ्ता लग जाता है. मैं इंटरनेशनली बात कर रही हूँ, एक दिन में होता है. लेकिन द केसेस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, वो सालों भी चलते हैं, बिकॉज दीज आर पीपल फ्रॉम कम्युनिटीज जो अक्सर उनका नॉलेज इतना होता ही नहीं. आपने उनको तैयार करना है, तो आपने उनको निगोसिएशन का भी आर्ट समझाना है कि आपने निगोसिएशन करनी कैसे है. आप तो बीच में रूल्स बता के नहीं हट सकते. इट्स नॉट दैट आप ये नहीं कह सकते वो अभी इतना रिफाइंड नहीं लेवल रीच हुआ होता, तो आपको उनकी हेल्प करनी पड़ती है. किसी को ज्यादा, किसी को कम करनी पड़ती है. देयर इज देयर आर टू ऑथर्स, रॉजर फिशर एंड विलियम यूरी, ठीक है, हार्वर्ड स्कूल ऑफ निगोसिएशन के. इनकी बुक है गेटिंग टू यस, ठीक है. दे डिफाइन निगोसिएशन एज अ बैक एंड फोर्थ communication designed to reach an agreement when you and the other side have some interests that are shared and others that are opposed. तो जो अपोज्ड हैं वो तो आप उनको प्रोटेक्ट करोगे ना, अपनी इंटरेस्ट तो आपने हमेशा प्रोटेक्ट करनी है. बट हाउ कैन यू रीच एन अग्रीमेंट? यू कैन ओनली रीच एन एग्रीमेंट व्हेन सम इंटरेस्ट एटलीस्ट आर शेयर्ड. कुछ आपका कॉमन होना जरूरी है. एंड इसमें वन ऑफ द सम ऑफ द टर्म्स दैट वी यूज आर, आप पोजिशनल निगोसिएशन कर रहे हैं या इंटेग्रेटिव निगोसिएशन कर रहे हैं. यानी पोजिशनल से मतलब हो जाएगा, आज मैं स्टक हूँ इस पॉइंट पे कि मुझे तो ये ऑरेंज है, मुझे मुझे ये ऑरेंज चाहिए, एंड फंसा इज ऑल्सो सेइंग कि मुझे तो ये ऑरेंज चाहिए. अगर हम इस चीज पे ही रह जाएंगे ना कि हमने इस ऑरेंज के पीछे पड़े रहना, हम सोल्यूशन नहीं रीच कर सके. वी हैव टू मूव बियॉन्ड दैट एंड लुक एट द नीड्स बियॉन्ड. व्हाई आई माइट नीड एन ऑरेंज?
तो दैट्स एन इंटेग्रेटिव अप्रोच, जिसमें आप बिल्कुल सॉफ्ट भी नहीं होगे, आप हार्ड भी नहीं होगे, आप नीड्स पे जाओगे और जहां सॉफ्ट होने की जरूरत है सॉफ्ट होगे और जहां हार्ड होने की जरूरत है वहां हार्ड होगे, राइट? सो somebody might ask, Sara, why do you want that orange? And I'm saying, I want to make juice out of it. So मुझे असल में उसका पल्प चाहिए, बट हंसा इज सेइंग कि मैंने तो स्कूल का प्रोजेक्ट करना है, मुझे तो सीड्स चाहिए. Both of us can win the situation by getting what we need. But if you're not even questioning where our interests overlap, what do we need, हम कभी भी उसकी solution ढूंढ ही नहीं सकेंगे. So negotiation में चाहे आप एक मीडिएटर के साथ कर रहे हैं, चाहे आप उसके बगैर कर रहे हैं, आपने देखना है कि आप लोगों की इंटरेस्ट किधर ओवरलैप करेंगे, आप क्या चीजें कॉमन ढूंढ सकते हैं, क्या नहीं ढूंढ सकते. दिस इज कॉल्ड जोन्स ऑफ पॉसिबल एग्रीमेंट. हम एक टर्म यूज करते हैं जोपा, ये हम मीडिएशन में भी यूज करते हैं, हम निगोसिएशन में भी यूज करते हैं. व्हाट आर योर जोन्स ऑफ पॉसिबल एग्रीमेंट? वो पोजीशन पे जब तक रहेंगे आप बिल्कुल अलग अलग होंगे. As soon as you start talking about, and here is where the mediator helps, starts talking to the parties, goes beyond their positions, starts looking at their interests. वो ढूंढने की कोशिश करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इंटरेस्ट क्या है, एंड बियॉन्ड दैट व्हाट आर द नीड्स. जितना पीछे जाते रहेंगे आपको उनमें कॉमन एलिमेंट्स निकलेंगे, और जितना आपको कॉमन एलिमेंट्स का पता चलेगा उतना ही आप सोल्यूशन रीच कर सकोगे. अदरवाइज इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ सोल्यूशन, बिकॉज आप उधर ही अगर खड़े रह जाओगे तो आप आगे मूव ऑन नहीं कर सकोगे. नाउ अगर आप हार्वर्ड नेगोशिएशन प्रोजेक्ट को देखें, दे टॉक अबाउट 7 एलिमेंट्स which are important in negotiation. There are 7 elements of negotiation. I will consider another one, which bonus element as well, जो हम आमतौर पे स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, not in quite a lot of detail, but at least लोगों को पता होना चाहिए कि negotiation हम जब करते हैं हम क्या क्या देखते हैं. टॉप पे जो चीज है दैट इज इंटरेस्ट. लाइक आई जस्ट सेड कि आप इंटरेस्ट देखोगे कि आपकी क्या इंटरेस्ट कॉमन है. यस, डिफरिंग इंटरेस्ट मैटर करती हैं बिकॉज आपने अपनी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करनी है, बट यू नीड टू सी व्हाट इज कॉमन. विदाउट दैट आप आगे नहीं मूव ऑन कर सकते. दूसरी है लेजिटिमेसी. व्हाट डू यू मीन लेजिटिमेसी? आप निगोशिएट करते हो, ये नहीं हो सकता आपको लगे दूसरा जो पर्सन है वो मेरा बस फायदा उठाना चाहता. ठीक है, once the other party is honest, has explained why they are demanding a certain thing. So for instance, हमारी कोविड-19 सिचुएशन थी, उसमें अक्सर लोग ह्यूमन रिसोर्स नहीं थी, कुछ लोगों के काफी लोगों के बिजनेसेस इफेक्ट हुए थे. विदाउट एनी इल इंटेंशन दोनों पार्टीज अपने कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे नहीं कर सक रही होती थी. अगर आपको लगे दूसरा कह रहे बस मैंने नहीं करना, आपका प्रोजेक्ट लेट होता है, लेट हो आपका नुकसान है, आपको नहीं लगेगा उनकी डिमांड कोई लेजिटिमेट है अगर वो कह रहे हैं 2 साल बाद, साल के बजाय मैं 2 साल बाद प्रोजेक्ट खत्म करूंगा या करूंगी. अब इफ यू लिसन टू देम एंड दे टॉक टू यू एंड दे टेल यू दीज आर द प्रॉब्लम्स, इसको हम किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं, मे बी यू कैन हेल्प मी विद दिस एलिमेंट, आप थोड़ा सा टाइम दे दें, इस एलिमेंट में ज्यादा मैं लोगों को इन्वॉल्व कर सकती हूँ, इस एलिमेंट में नहीं कर सकती. व्हाई डोंट यू चेंज द इसका थोड़ा सा आप स्ट्रक्चर चेंज कर दें ताकि हमें हेल्प हो जाए. सो वट एवर यू डिमांडिंग शुड बी लेजिटिमेट, वरना द अदर पार्टी वुड नॉट वांट टू एक्सेप्ट इट. इट वुड सीम आपका फायदा उठाया जाए. एंड लाइक आई सेड पहले, इवन मीडिएशन में भी थर्ड वन इज रिलेशनशिप्स. आप निगोसिएशन में या मीडिएशन में तभी जाएंगे जहां आपके लिए रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट है, जहां यू वांट टू मेंटेन द रिलेशनशिप रादर देन उसको खत्म करें. अब वो किसी किस्म की भी प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो सकती है, वो फैमिली रिलेशनशिप हो सकते हैं. दैट डज नॉट मीन कि फैमिली रिलेशनशिप में इट इज द टॉप लेवल ऑफ रिलेशनशिप्स. फर्ज कर लें मियाँ बीवी की बात हो रही है कि जी डिवोर्स अब नहीं करना, हम ये बात नहीं करें. डिवोर्स की बात अगर हो रही है, चाइल्ड कस्टडी की बात हो रही है, मेंटेनेंस की, कि हमने इन इश्यूज को रिजॉल्व करने हैं तो अच्छे तरीके से कैसे करने हैं कि कल को अगर बच्चा भी इन्वॉल्व है फॉर इंस्टेंस, तो हम साथ मिलकर इश्यूज कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, रादर देन हम एक दूसरे से बात करने के काबिल ही ना रहें क्योंकि हम कोर्ट में जा चुके हैं और एक पार्टी को सब कुछ मिल गया और दूसरे को कुछ भी नहीं मिला. फिर ऑल्टरनेटिव्स एंड बांटना. मैं बांटना पे अभी जाती हूँ. ऑल्टरनेटिव्स यानी आप जब एक निगोसिएशन की टेबल पे आए हैं, आपके पास और क्या ऑल्टरनेटिव्स थे या हैं. Because if you are sitting at this table and you're thinking that you're going to get a deal out of it or something out of it, do you have something else which is better? So आपको अपने alternatives पता होने चाहिए, या वो जो alternatives हैं वो इतने अच्छे नहीं है, which is why it makes sense कि यहाँ जो भी मैं करके जा रही हूँ, negotiation करके जा रही हूँ, चाहे वो मीडिएटर की मदद से या मीडिएटर के बगैर करके जा रही हूँ, मुझे उससे कुछ बेहतर ही मिलेगा.
So you need to know your alternative because that will help you decide कि आप जो आज इस टेबल से लेके जा रहे हो वो आपको सूट करता भी है, यानी आप कहीं अपना नुकसान तो नहीं करके जा रहे. And the term that I used was partner, best alternative to the negotiated agreement. There are other terms as well. I'm going to be focusing on this one only at the moment. कि आपका बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू द नेगोशिएटेड एग्रीमेंट क्या है. आज आप इस टेबल पे कुछ नहीं डिसाइड करते तो वो ऑल्टरनेटिव है, वो आपको पता होना चाहिए. फिर वाइल नेगोशिएटिंग हम जब स्टूडेंट्स को भी स्ट्रैटेजी सिखाते हैं, या हम अपने आप में जब लोग नेगोशिएटर्स हैं या एक मीडिएटर आप किसी को कैपेसिटी बिल्डिंग सिखा रहे हैं किसी को कि नेगोशिएट करने हैं, आप ये बात सिखाते हो ऑप्शन होने चाहिए आपके पास. व्हाट डू यू मीन ऑप्शंस? दैट्स नॉट द सेम एज अल्टरनेटिव्स एंड पार्टनर. Options in the solution that you are proposing or putting forward. What kind of options are you putting forward? There should be more than one. आप सोच के एक ऑप्शन नहीं आ सकते. वो ऑप्शन फेल कर जाएगा तो आगे क्या होगा? जब दूसरा बंदा अपनी प्रॉब्लम बताएगा, when they put forward, oh, I am facing this issue, and I'm being honest with you, you need to at that point think and be able to come up with creative options. Then the sixth one is commitments. By the end of your negotiations, you're putting forward some offers. You're putting forward that, I think I can offer you this, or I think we can agree to, this and that. आप उसमें अपनी कमिटमेंट दे रहे हो, ठीक है. आपका उसमें गुड फेथ नहीं रहता कि आज मैं आपको कहूँ मेरी कमिटमेंट है इस चीज की और मैं थोड़ी देर बाद कहूँ नहीं नहीं नहीं, आई डोंट थिंक सो. आप अपनी कमिटमेंट दे रहे हो. ऑफ कोर्स यू हैव अ राइट टू नॉट स्टे इन द मीडिएशन, बट जस्ट नो दैट मीडिएशन आपकी सक्सेसफुल तभी होगी या नेगोशिएशन आपकी सक्सेसफुल तभी होगी जब आपको लगा दूसरी पार्टी आपके साथ ऑनेस्टली से डील कर रही है, तो जो कमिटमेंट दे रही है वो उसको पूरा करने की इंटेंशन रखती है. एंड द फोरमोस्ट वन, द सेवंथ वन दे टॉक अबाउट इज कम्युनिकेशन. इट्स एन आर्ट. हाउ डू यू कम्युनिकेट? कोई नेगेटिव हो रहा है, आपने उसको पॉजिटिव कैसे करना है, आप अपनी नीड्स कैसे कम्युनिकेट कर सक रहे हो, आप अपनी इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करो. इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन. तो जब हम हार्वर्ड नेगोशिएशन प्रोजेक्ट की बात करते हैं, we realize the focus is on these 7 elements. However, in addition, if you were to do, आप negotiation का आर्ट कहीं सीख रहे होंगे, आप डिटेल में करेंगे, तो आपको रियलाइज होगा कि your personality has a big role to play in how you negotiate. So I might be a very authoritative person. मुझे डोमिनेट करने की शायद आदत हो, मुझे आदत हो कि मैं जो कहती हूँ बस वो होना चाहिए. On the other hand, the other person might be very compromising. ठीक है, उसको नेगोशिएट नहीं करना आता इतना अच्छा, उसकी पर्सनैलिटी में उस तरह है नहीं. सो अगर तो मीडिएटर इन्वॉल्व है, वो सिखाएगा किस तरह बैलेंस अचीव करना है. बट ऑल्सो एज अ नेगोशिएटर व्हेन यू गेटिंग ट्रेड, आपको पता होना चाहिए आपकी पर्सनैलिटी कैसी है. And being too authoritative or being too dominating might lead to the negotiation failing. Or this is the time to be commanding or be dominating because आप चाहते हो मैं अपनी interest protect करूं. Also, when you're looking at the other person and talking to the other person, you should know दूसरे की personality कैसी है, because आपको पता होना चाहिए ये इस चीज पे तो मान जाएगा, दूसरे पे नहीं माने. राइट. सो आपने जब अपना देखना है ना कि हम नेगोशिएट करने, क्या चीज में गिव अप कर दूं, दूसरी चीज में गिव अप नहीं कर सकता या कर सकती, you should know what the other person's personality is and how much will the other person be prioritizing one thing and not the other. ठीक है. सो आपको ये सारी चीजें जो हैं ये देखनी पड़ती हैं और इनके मुताबिक आपको फिर चलना पड़ता है. Now this is as far as negotiation is generally speaking concerned. If and mediation, if you were to talk about Pakistan in particular, पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों में, पिछले चंद सालों में ही मीडिएशन का स्कोप जो है वो ज्यादा बढ़ा है. पहले आई थिंक अ लॉट ऑफ अस, आई वोंट से जस्ट मी, अ लॉट ऑफ अस have been, and people before me and people with me and people after me have been trying to create a lot of awareness as far as mediation is concerned, ताकि हम इसको भी आगे बढ़ा सकें, लोगों के पास एक से ज्यादा सोल्यूशन हो. So although Sindh was much ahead of us and mediations चल रही थी, but there was no even now we are working on it, but there was no central regulatory system. कौन है जो इन चीजों को रेगुलेट कर रहा है? प्राइवेट बॉडीज बन जाती थी, बट उनको रेगुलेशन का मेथड क्या था? सो सिंध हाई कोर्ट ने फिर मीडिएटर्स को रजिस्टर, एडीआर सेंटर्स को रजिस्टर करना शुरू किया. इस्लामाबाद हाई कोर्ट इज नाउ वेरी एक्टिव. ठीक है.
under the directions of the Supreme Court, but also the ministry is also very involved, the Ministry of Law and Justice. अब there are particular rules कि ADR सेंटर में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, आप अपने आप को किस तरह रजिस्टर कर सकते हो, एक मीडिएटर की किस किस्म की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो अपने आप को फिर रजिस्टर कर सके, बिकॉज अदरवाइज यू हैव वेरी डिफरेंट स्टैंडर्ड्स आपके बिल्ड हो जाते हैं, डिफरेंट लेयर्स होते हैं, हर कोई शुरू हुआ हुआ विदाउट ट्रेनिंग. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके इस तरह के लेयर्स हों, इस तरह के रूल्स हों, इस तरह के स्टैंडर्ड्स. I think there is a lot to be done even now, but we are in a good place, in a good starting point. And I think अगर हम इन चीजों के साथ साथ स्टूडेंट्स पे फोकस करके हम वर्कशॉप्स करते रहें, हम स्टूडेंट्स को बता सकें, हम ना सिर्फ कॉलेज लेवल पे जिस तरह काफी ट्रेंड हो गया, स्टार्ट हो गई है, टेकिंग इट डाउन टू ए लेवल एंड ओ लेवल एंड आहिस्ता आहिस्ता पेयर मीडिएशन हम छोटे वक्त से अगर स्टार्ट करें, तो आई थिंक दिस इज समथिंग कि अगर हम एक छोटे बच्चे को पूछें जी प्रोफेशंस क्या हैं, वो क्लास 1 में हो, तो वो ये भी कह सके आई वांट टू बी अ मीडिएटर व्हेन आई ग्रो अप. राइट नाउ तो वो ये सोच ही नहीं सकता इवन कि मैं एडीआर स्पेशलिस्ट हूंगा जब मैं बड़ा हूंगा या बड़ी होंगी, बिकॉज दिस इज समथिंग जो जहन में नहीं है. One point I will make before I wrap this up is about women in this. हर प्रोफेशन जब नया होता है, हमारी मर्जी होती है उसको हम किस क्या शेप देते हैं. It is still a new profession. I would say our youth in general, but I would definitely encourage women to be a part of this, because जब हम कहते हैं कि जी किसी प्रोफेशन में बायस आ गया है और ये नया प्रोफेशन है, इफ यू मेक श्योर यू आर अ पार्ट ऑफ इट एट द स्टार्ट, हम ही मेक श्योर करेंगे कि इसमें बायसेस ना आए. बिकॉज इफ यू वेट फॉर कि वही प्रोफेशंस में से लोग आगे जाते रहें, तो फिर उन बाकी प्रोफेशंस के, चाहे वो हम लॉयर्स की बात करें, चाहे जनरल अदर बिजनेसेस की बात करें, तो वो जो इंटेंस बायसेस हैं वो आगे आ जाते. So I think all kind of people from all walks of life, it is not restricted to lawyers, it is not restricted to law students, all kind of businesses, all kind of doctors, engineers, हर कोई इसमें practice कर सकता है. So I think all kind of people, all kind of, males, females, everyone should be a part of this. Thank you so much. Is there any question, anything that you would like for me to answer? Please let me know. Yes, ma'am. Thank you so much. It was really an insightful session. Thank you for your time. बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर. एक क्वेश्चन था जो मेरे ख्याल में आपने आंसर भी कर दिया है, वो ये था कि क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कि हु कैन बी अ मीडिएटर एंड हु कैन बी अ कंसिलिएटर. क्या जरूरी है कि सिर्फ एक एडवोकेट ही मीडिएटर बन सकता है? No. So like I clarified, कि you don't need to, you can be from any background for to be a mediator, पर आपकी एक certain hours of training है from recognized accredited bodies जहाँ से आपको वो ट्रेनिंग लेनी जरूरी होती है. वो ट्रेनिंग अगर आपकी हो जाए तो you can become a mediator. You don't need to be a lawyer or a law student. You can be from any background. आई सी. सही सही. ठीक है. ऐसा ना आपके पास कोई क्वेश्चंस वगैरह हो? ठीक है. वी डू हैव अनदर क्वेश्चन फ्रॉम यूट्यूब. उसमें ये पूछा गया है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एडीआर एंड डीआरसी? DRC, I'm not sure what they mean by DRC. हमारी ADR में ऐसी कोई टर्म है नहीं. Ghulam अच्छा. Mohammed, you are listening. Maybe you can, enlighten us. Maybe I have missed out on the term, but alternative dispute resolution होती है. आप dispute resolution की बात करते हो. I can't think of what DRC might be. And they're Okay, no. talking about the Dispute Resolution Committee in KPK. Okay, they're talking about the committee. That's a committee. That's not ADR. That's not a type of ADR. So आपकी committees बनती हैं, वो even इस्लामाबाद में बनी थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कमिटी बनाई थी, आपकी उधर भी कमिटी बनी. दोस्त कमिटीज, उनका मकसद तो सिर्फ ये होता है कि आप रूल्स बनाएं, जिन रूल्स को फिर आपने इन्फोर्स कराना है या फॉलो करना है. That's a committee. That's not ADR. ADR is general practiced all over the world. वो कमिटी एडीआर के रूल्स पे डिसाइड कर सकती है, डिस्कस कर सकती है, बट दैट्स नॉट एडीआर इटसेल्फ. अच्छा अच्छा. सही. एक और क्वेश्चन भी है कि क्या इज देयर एनी कॉन्सेप्ट ऑफ jurisdiction इन मीडिएशन? नो, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ jurisdiction इन मीडिएशन, बिकॉज आपका इसमें लॉ एप्लीकेबल नहीं है. हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आप एक पर्टिकुलर बात कर रहे हो और उसमें आप कहोगे कि जी लीगली मेरा ये बनता है, तो आप
अपने ऑप्शंस वे कर रहे हो कि क्या चीज मुझे यहाँ से मिल सकती है, बिकॉज यू थिंकिंग कि जी मुझे लीगली तो बहुत कुछ मिल सकते हैं या नहीं. बट मीडिएशन itself is not restricted to jurisdictions. It has no rules of evidence. It's a very contractual based thing कि आप और मैं आज बैठ के आपस में कोई डिसीजन कर रहे हैं तो वो क्या होगी. However, having said that, इतना जरूर है, आप कुछ इलीगल चीज नहीं कर सकते डिसाइड. यू कांट डिसाइड तो ऑन मैम फिर समथिंग जैसे इलीगल. जैसे आपने कहा ये लीगली तो मतलब इस तरीके से नहीं है कि इसमें लॉस वगैरह एप्लीकेबल है, तो फिर Yes. ऑब्वियसली फिर इसका जो डिसीजन आता है वो भी बाइंडिंग नहीं होगा पार्ट्स पर, यह है. तो प्रोसीजर कॉन्ट्रैक्ट्स आर बाइंडिंग बिटवीन द पार्टीज. कॉन्ट्रैक्ट आपके बाइंडिंग होते हैं. दूसरी एक और चीज होती है कि देखो कोर्ट की अगर डायरेक्शन आई है, डिपेंड करता है कि चीज स्टार्ट कैसे है. कोर्ट ने कहा है कि जाएं आप मीडिएशन पहले कर आए, ठीक है. आप कोर्ट के थ्रू भी डिफरेंट एक्चुअली कंट्रीज में डिफरेंट सिस्टम होता है. आप कोर्ट के थ्रू भी उसको फिर इन्फोर्स करा सकते हैं कि हमारी एक अग्रीमेंट हो गई है और उसको पार्ट ऑफ वो बना लें आप जजमेंट, ठीक है, वो भी हो सकता है. दूसरी चीज होती है कि a lot of countries, not a lot of countries, but some countries have signed the Singapore mediation convention. We unfortunately have not done that yet, ठीक है. So there are some elements where people might feel कि जी what is binding them to this. But at contractual level, number one, आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है. जैसे भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब आप ब्रीच करते हो उसमें आप एक्शन ले सकते हो. नंबर वन, इसमें आप ब्रीच करो तो एक्शन ले सकते हो. दूसरा, आवर कोर्ट्स एट द मोमेंट आर वेरी प्रोएक्टिव एज फार एज मीडिएशन इज कंसर्न. आप उसको कोर्ट के थ्रू उसको इन्फोर्स करा. जी, have I been able to answer the question? Yes, I think that's sufficient. अच्छा, एक मेरी तरफ से सवाल था. यस मैम. आई थिंक दैट बी द लास्ट वन. तो अभी रिसेंटली मैम हमने देखा है कि देयर इज अ बिल दैट हैज बीन प्रपोज्ड. तो उसमें आप देखती हैं कि लाइक किस तरीके से इफ यू हैव गो थ्रू दैट, तो उसमें किस तरीके से लाइक मीडिएशन को फ्रेम किया गया है, एंड इज इट समथिंग जो कि आने वाले वक्त में अगर वो बिल पास होता है तो पाकिस्तान के लिए समहाउ हेल्प. देखो, ये तो वी कांट डिनाई दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एट दिस मोमेंट वी हैव एडीआर एक्ट्स, बट हमारे पास कोई पर्टिकुलर मीडिएशन बिल एक्सेप्ट फॉर गिलगित बल्तिस्तान के अलावा हमारे सच कोई मीडिएशन बिल है सच नहीं, ठीक है. वी नीड टू हैव पर्टिकुलर मीडिएशन लॉज, नॉट जस्ट जनरल एडीआर लॉज, बिकॉज जब तक वो बिल्कुल उन चीजों पे फोकस नहीं कर रहे होंगे और हर चीज को टेक इन टू अकाउंट नहीं कर रहे होंगे, डिफरेंस बिटवीन मीडिएशन एंड फॉर इंस्टेंस कंसिलिएशन नहीं बता रहे होंगे, and how these rules are to be enforced, and how for instance a mediator या फिर प्राइवेट सेंटर है उसके पास आपने किस तरह जाना है, ये सारी चीजें नहीं होंगी तो of course parties and people in general will be very reluctant to approach mediation. तो of course जब भी आप इस तरह का बिल इंट्रोड्यूस करते हैं, this goes a long way. I'm not saying it will be perfect. I'm sure loopholes होते हैं, but once something is there, आप उसमें फिर अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, उसको बेहतर कर सकते हैं. एटलीस्ट आप बेहतरी की तरफ जा रहे होते हैं. विदाउट इट एटलीस्ट देयर इज chaos, there's no system. Perfect, ma'am. Thank you so much. Ansar, do we have any other questions? I think we don't have any other questions. Thank you so much, ma'am, for your time. It was really a pleasure और बहुत सारी चीजें जो हमें सीखने को मिली with respect to mediation and negotiation. Thank you so much. आपने अपनी busy routine में से time निकाला, because we know कि जब हम सारा कुछ coordinate कर रहे थे तो schedule का बड़ा मसला हो रहा था. So thank you so much for taking out your precious time for this event. Not at all, and thank you so much. And you're more than welcome. Ghulam Mohammed knows I love these sorts of things. I think students को and हमारे youth को, they should be involved in this. They should know about this, and जितनी awareness हम create कर सकते हैं, play our own part हमें करना चाहिए. You're doing a great job. Thank you so much, ma'am. It means a lot. Thank So, you. thank you. So we will now proceed towards the second part of this session. That is going to be based on moot competitions, which are related to negotiation and mediation. And for that competition, we have with us Sir Ghulam Muhammad Adnan. So, as of introduction, Sir Ghulam is a practicing lawyer based in Lahore. He is currently working at the chamber or as an associate at the chamber of barristers Saman Safdar on criminal and constitutional matters, who is also one of my favorite lawyers, you can say. Ansar, if you remember that final moot wala final. तो उसके साथ साथ जो है सर गुलाम
He has been accredited mediator and ADR professional. He is also served as a secretary for the IBA, VIAC, CPRC, Vienna Mediation and Negotiation Competition. Along with that, he frequently coaches teams for various types of ADR related competition. So thank you so much, sir. We are really honored to have you, and we really look forward कि हमें जो इस सेशन से मीडिएशन एंड नेगोशिएशन के ऊपर जो कॉम्पिटिशन है उनके बारे में थोड़ी बहुत जो अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तानी ऑडियंस लैक करती है वो सीखने के लिए मिलेगी. Over to you, sir. Assalamu alaikum. Thank you very much for the very kind introduction, Essen, and thank you very much for having this workshop, both of you. I think it was the need of the hour, and I am truly honored and delighted to be a part of this workshop alongside both of you. Just one note before we begin. Agar at any point I am lagging or meri voice clear nahi hai, please drop me a text or let me know, because you know how the internet situation is nowadays. Before we commence, Sir Salman, everyone's favorite, I think. I'm privileged to be working with him, and Ma'am Sara, मैं वो पौधा हूँ जिसको मैम सारा ने आज से 4 साल पहले लगाया था, and now I am here in front of you as a part of these numerous international competitions. So kudos to Ma'am Sara. She's the reason. Voice, okay. Let me know if it's better now. Ma'am Sara is the reason why today I'm sitting in front of you here. Without her, I would have not been here. I have been the unlucky and both the lucky batches when it comes to mediations and negotiations. Unlucky because हमारे पास ऐसी opportunities नहीं थी when we were participating, when we were getting started with negotiations. But thankfully we had people like Ma'am Sara, Dr. Nudrat, who helped us and who showed us the way. But these students are very lucky. They have all these people and this amazing panel here. Could you please allow me to share my screen so I can share my presentation? It says disabled. Amazing, thank you. Yes. Can you see my screen? Perfect. Achaji, very kindly Essen has introduced me, so I'm not going to dive any further into that. I'm just quickly going to jump on to the agenda point. First, we're going to talk about negotiation and mediation. That is something Ma'am Sara को जिसने बहुत depth में cover कर लिया, so I won't dive too much into it, but there are just 2 key takeaways which I want you to take from them. Then, why do you want to participate in this competition? क्या roles होता है इन competition का? किस type के competitions होते हैं? वो work कैसे करते हैं? Competition progress कैसे करता है? Apply कैसे करना है? And then some frequently asked questions about these competitions. सबसे पहले ये मेरी slide होती है whenever I give a presentation on mediation, negotiation, or any ADR method, and that's why ADR. These are one of my, like 3 of my favorite quotes, in fact. Out beyond ideas of wrongdoing and right doing, there lies a field. I'll meet you there. Rumi. Third, in fact, which is my most favorite, litigation is a scenario in which you go in as a bull but leave as a sausage. That's the unfortunate reality of litigation. Justice Mansoor Ali Shah at a seminar in Lahore, his words there. So this is why you want to come to ADR. Now, very quickly, negotiation. क्या होती है negotiation? Simple terms में, मैं नीचे जाता हूँ फ्रूट वाले के पास, I want to buy apples. वो कहते हैं जी 100 रुपए के, मैं कहता हूँ यार 80 के दे दो. ठीक है. That's negotiation. Back and forth communication designed to reach an agreement where both parties have interests that are shared and others that are opposed. अब ये definition जो है, जिस book से ली है, this is that book, Getting to Yes. If you're getting started with ADR, negotiations and mediation, this is the book you want to buy. 500-600 रुपए की मिल जाएगी at any bookshop. Read this book and you'll learn a lot. Second, mediation क्या होती है? For example, मेरी और एसन की बहस हो जाती है. We are not on a common ground about something. एसन और मैं आपस में बैठ के डिस्कस कर लेते हैं कि यार let's resolve our differences. We're negotiating. मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू, एसन का एक पॉइंट ऑफ व्यू, नेगोशिएटिंग कि हम एक कॉमन ग्राउंड पे आ जाएं. लेट्स से हम नहीं नेगोशिएट कर सकते, वी आर अनएबल टू रीच अ कॉमन ग्राउंड. मैम सारा कहते हैं यार आओ बच्चों, मैं तुम लोगों की मीडिएशन कराती हूँ. I'll help you both clarify the issues. I'll frame the discussion for you. I'll assist you in the process. वो मीडिएशन हो गई. तो इसमें कॉमनैलिटी क्या है मीडिएशन और नेगोशिएशन में? कॉमनैलिटी ये है कि दोनों में नेगोशिएशन होती है, और डिफरेंस क्या है कि मीडिएशन में एक थर्ड पार्टी असिस्ट करती है दोनों पार्टीज को नेगोशिएट करने में. These are the 2 differences and commonalities which you want to keep in mind throughout the presentation.
Before diving any further into it, why participate? Firstly, आपको एक्सपोजर मिलता है नेगोशिएशन मीडिएशन का, कैसे होती है नेगोशिएशन, क्या डायनामिक्स होते हैं, व्हाट हैपेंस ऑन स्पॉट, व्हाट यू नीड टू स्पीक, आप क्या बोलते हो तो उसका क्या इफेक्ट होता है. देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिट, आपको एक्सपर्ट से फीडबैक मिलता है. whenever you are participating in a competition, mediation or negotiation, वहां पे there is a panel of experts जो आपको फीडबैक देते हैं कि आपने क्या सही किया, क्या गलत किया. Then there's networking. You network with people, you meet new people. And then these two quotes. Number one, it takes a lot of effort to appear effortless. तो नेगोशिएशन मीडिएशन कैसे आएगी जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे. और प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे, हमें रियल लाइफ में तो कोई डिवोर्स का केस नहीं देगा, हमें कोई कंपनी का मैटर नहीं देगा. we're just novices, we're just getting started. Do you think anyone would trust us with 2 years experience? Probably not. Maybe some shadowing experiences, but no one would really give you mediations directly. These big mediations छोटी तो मिल जाएंगी. तो उसके लिए कैसे प्रैक्टिस करें, कॉम्पिटिशन्स में जाएं स्टूडेंट्स. गो इन, प्रैक्टिस योर स्किल्स, प्रैक्टिस द क्राफ्ट, put in that effort, get feedback from experts, and then apply that feedback to become better. Then एक मेरा favorite quote from Bruce Edwards, our survival as a culture depends on our future ability to resolve disagreements. Conflict inevitable होता है, जहां दो बंदे होंगे, दो इंसान होंगे, वहां कहीं ना कहीं जाके डिफरेंस जरूर आ जाता है. बट मैटर क्या करता है कि क्या वो इस डिफरेंस को रिजॉल्व कर पाते हैं सही से या नहीं कर पाते. अब वो हम कैसे सीखेंगे. नंबर वन, ट्रेनिंग से सीख जाएंगे, लेकिन ट्रेनिंग की कॉस्ट कहाँ से स्टार्ट होती है, 70-80 हज़ार रुपए से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, विच यू शुड आइडियली डू, बट नॉट एवरीवन कैन डू दैट. तो स्टूडेंट्स क्या करें, participate in competitions, get a coach, volunteer coach, go look up on LinkedIn, have them coach you and participate in these competitions, get feedback from people and then apply that feedback, and then eventually you can get trained. अच्छा, मीडिएशन और नेगोशिएशन में दो टाइप के रोल्स होते हैं, एक मीडिएटर का होता है, एक नेगोशिएटर का होता है. दो टाइप की टीम्स होती हैं, एक मीडिएटर टीम होती है, एक नेगोशिएटर टीम होती है. अब there are 3 different types of mediation and negotiation competitions anywhere in the world. अब इनके नाम ना बड़े मिसलीडिंग है, तो नाम पे नहीं फोकस करना. टुडे आई हैव बेसिकली बाइफरकेटेड कि कौन सा मीडिएशन कंपटीशन किस टाइप का है, किसकी क्या रेलेवेंस है. तो लेट मी वेरी क्विकली रन यू थ्रू दोस. पहला तो होता है टाइप नेगोशिएशन कंपटीशन का. इसमें क्या होता है, इसमें स्टूडेंट्स आते हैं, टीम्स होती हैं, आती हैं, एक रिक्वेस्टिंग टीम होगी, एक रिस्पॉन्डिंग टीम होगी, आएंगी, बैठेंगी, नेगोशिएट करेंगी इन ए नेगोशिएशन रोल प्ले. मीडिएटर नहीं होगा, सामने जजेस का पैनल बैठा होगा, वो उनको फीडबैक देगा, बस. सेकंड टाइप, मीडिएशन कंपटीशन. अब इसमें क्या होता है, इसमें स्टूडेंट्स एज नेगोशिएटर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, बिकॉज रिमेंबर मीडिएशन के अंदर क्या कॉमनैलिटी है, एज नेगोशिएशन नेगोशिएशन होती है. डिफरेंस क्या है, मीडिएटर होता है. तो मीडिएशन कॉम्पिटिशन में क्या होता है, स्टूडेंट्स जो है वो एज नेगोशिएटर्स पार्टिसिपेट करते हैं. तो एक रिक्वेस्टिंग टीम होगी, एक रिस्पॉन्डिंग टीम होगी, और एक बीच में एक मीडिएटर होगा. वो मीडिएटर स्टूडेंट नहीं होता, वो मीडिएटर एक रियल लाइफ प्रोफेशनल होता है, जिसको 30 साल का 40 साल का तजर्बा होता है फील्ड में, एंड वो स्टूडेंट्स को हेल्प करता है. तो स्टूडेंट को नेगोशिएटर का रोल समझ आता है, वो नेगोशिएट करते हैं उस मीडिएशन में. तीसरे कॉम्पिटिशन कौन से होते हैं, तीसरे होते हैं मीडिएशन एंड नेगोशिएशन कॉम्पिटिशन. दोनों नाम आ जाते हैं, मीडिएशन भी आ जाता है, नेगोशिएशन भी आ जाता है. इसमें क्या होता है, इसमें स्टूडेंट्स ही नेगोशिएटर्स भी होते हैं, इसमें स्टूडेंट्स ही मीडिएटर्स भी होते हैं. तो इसमें दो टाइप की टीम्स होती हैं, एक नेगोशिएटिंग टीम्स होंगी जिसमें एक रिक्वेस्टिंग टीम होगी, एक रिस्पॉन्डिंग टीम होगी, और एक मीडिएटर टीम होगी जिसके अंदर मीडिएटर भी स्टूडेंट्स ही होंगे, एंड देन वो उस नेगोशिएटर टीम को हेल्प करेंगे टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट. अब काम कैसे करते हैं, पहले कॉम्पिटिशन उस पे आ जाते हैं. टीम कंपोजिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अभी एक क्वेश्चन भी था कि व्हाट इज द रोल ऑफ लॉयर्स इन मीडिएशन, एंड आई होप दिस विल आंसर योर कंसर्न रिगार्डिंग दैट टू. नेगोशिएटर टीम जो होती है ना, वो मिनिमम 2 मेंबर्स की होती है कहीं भी, और मैक्सिमम 4 मेंबर्स की होती है किसी भी कंपटीशन में. 6 की भी होती है, लेकिन जनरली 2 से 4 मेंबर्स की होती है, 2 से कम की नहीं हो सकती नेगोशिएटर टीम. होता क्या है, एक उसमें होता है क्लाइंट. क्लाइंट कौन होता है, जिसको एक्चुअली जिसका डिस्प्यूट होता है. तो मेरा और एसन की, लेट्स से वी हैव अ मिसअंडरस्टैंडिंग, एसन की अपनी साइड ऑफ द स्टोरी है, मेरी अपनी साइड ऑफ द स्टोरी है. वी आर गोइंग टू बी द क्लाइंट. नाउ व्हेन वी गो इनटू द नेगोशिएशन और अ मीडिएशन, हम अकेले नहीं जाते. दिस इज वेयर द रोल ऑफ द लॉयर कम्स इन.
we would have our counsels with us, we would have our lawyers with us. So SN का lawyer उसके साथ होगा, मेरा lawyer मेरे साथ होगा. What will the lawyers do? They will not talk about legalities there. They will not talk about कि हम कोर्ट चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, although to some extent we do talk about that. लेकिन उनका रोल ये होता है कि भाई लीगली इस डिस्प्यूट के क्या इम्प्लीकेशंस हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या एग्रीमेंट कर सकते हैं, उसकी क्या लीगल रिपरकशंस हैं, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, एंड हेल्पिंग द पार्टीज टू रिजॉल्व दैट डिस्प्यूट. तो वो लॉयर्स, एसएन का लॉयर उसको हेल्प कर रहा होगा, मेरा लॉयर मुझे हेल्प कर रहा होगा, एंड वील सिट टुगेदर एंड नेगोशिएट. तो नेगोशिएटेड टीम में 2 मेंबर्स होंगे. कंपटीशन शुरू हुआ, 2 मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे उस कंपटीशन में, उस राउंड में. एक होगा क्लाइंट, मी एंड एसन who are affected by the dispute. एक होगा काउंसिल, मेरे साथ जो मेरा लॉयर होगा, और वो मुझे असिस्ट करेगा ड्यूरिंग दैट नेगोशिएशन सेशन इन द लीगैलिटीज एंड वर्किंग थ्रू द प्रोसेस. अब एक इसमें क्राइटेरिया होता है हर कंपटीशन का, मोस्टली कंपटीशन का, और वो ये होता है कि जो काउंसिल वाला बच्चा होता है ना, वो लॉ स्टूडेंट होना चाहिए. काउंसिल जो एक्ट करेगा वो लॉ स्टूडेंट होना चाहिए. इसके 2 मीनिंग्स हैं. तो यही ऑब्वियसली कि वो लॉ स्टूडेंट होना चाहिए, बट इसका एक और मीनिंग ये है कि क्लाइंट कोई स्टूडेंट भी हो सकता है. तो इफ यू हैव अ यूनिवर्सिटी जहाँ पे साइकोलॉजी भी पढ़ाई जा रही है, जहाँ लॉ भी पढ़ाया जा रहा है, यू कैन हैव अ टीम, इंटर डिपार्टमेंट टीम. साइकोलॉजी का स्टूडेंट आ जाए, क्लाइंट की तरह एक्ट कर ले. आप आ जाओ, लॉ के स्टूडेंट हो, आप एज अ काउंसिल एक्ट कर लो एंड पार्टिसिपेट इन मीडिएशन नेगोशिएशन कॉम्पिटिशन. सेकेंड, मीडिएटर टीम होती है. मीडिएटर टीम जो होती है उसके अंदर जिन कंपटीशन में मीडिएटर टीम पार्टिसिपेट करती है, उसके अंदर मीडिएटर टीम मिनिमम 1 पर्सन मैक्सिमम 2 पीपल की होती है. एंड वो क्या होता है, ही डजंट हैव टू बी अ लॉ स्टूडेंट, दे डोंट हैव टू बी अ लॉ स्टूडेंट, बस उनको कुछ पता होना चाहिए कैसे मीडिएशन करनी है. फिर कंपटीशन में जब आप जाते हैं तो इन नेगोशिएटर टीम्स को बाइफरकेट कर दिया जाता है. लेट्स से 2 प्रिलिमिनरी राउंड्स हैं. एक राउंड में एक टीम रिक्वेस्टिंग पार्टी होगी, एक राउंड में वो रिस्पॉन्डिंग पार्टी होगी. रिक्वेस्टिंग पार्टी कैसे, अगेन कमिंग बैक, मेरा और मेरे दोस्त का डिस्प्यूट हो गया, मैं उसको कहता हूँ आओ यार नेगोशिएट करते हैं. आई ब्रिंग देम टू द नेगोशिएशन टेबल. मैं रिक्वेस्टिंग पार्टी हो जाऊंगा, वो रिस्पॉन्डिंग पार्टी हो जाएगा. वाइस वर्सा, अगर वो मुझे कहता है कि यार आओ नेगोशिएट करते हैं, लेट्स ब्रिंग इन आवर लॉयर्स, लेट्स सिट एट अ टेबल, लेट्स डू अ टेबल टॉक, तो वो रिक्वेस्टिंग हो जाएगा, मैं रिस्पॉन्डिंग हो जाऊंगा. फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता. क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं होते कौन रिक्वेस्टिंग है, कौन रिस्पॉन्डिंग है, क्या कैसे. नो, इट डजंट मैटर. You sit there together to discuss. It doesn't matter who initiated the process. It doesn't matter who knocked the door of the mediator or the negotiation first. It just is a difference कि requesting कौन है, responding कौन है. That's the only difference. अब competition work कैसे करता है? Coming to the nitty-gritties. This is the most confusing part जो बच्चों को समझ नहीं आती. So I would suggest you try to follow me here. 3 टाइप के डॉक्यूमेंट्स होते हैं in a mediation or negotiation competition. फर्स्टली, एक होती है जनरल इंफॉर्मेशन, एक होती है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर द रिक्वेस्टिंग पार्टी, एक होती है कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर द रिस्पॉन्डिंग पार्टी. अब जनरल इंफॉर्मेशन होती है बैकग्राउंड ऑफ द डिस्प्यूट. सो लेट्स से, कमिंग बैक टू द सेम एग्जांपल, मैं और एसन काम कर रहे हैं इकट्ठे, वी आर वर्किंग अबाउट दिस वर्कशॉप. कैसे डिस्प्यूट अराइज हुआ, एसन का कोई पॉइंट ऑफ व्यू था, मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू था. बैक स्टोरी, ऐसे में मेरी दोस्ती कैसी है, हमारा रिलेशनशिप क्या है. तो बेसिकली द बैक स्टोरी ऑफ द डिस्प्यूट, एंड क्या डिस्प्यूट अराइज हुआ, वो जो ऊपर से नजर आ रहा होता है क्या मसला क्या हुआ 2 बंदों में, वो उसकी बैक स्टोरी होती है. 1 से 2 पेजेस की बैक स्टोरी होती है. ये बैक स्टोरी मीडिएटर के पास भी जाती है अगर मीडिएटर होगा कॉम्पिटिशन में. अगर मीडिएटर नहीं है तो उसके पास नहीं जाएगी ऑब्वियसली. एंड अगर नेगोशिएटर्स हैं जो, उन सारों के पास जाएगी. तो नेगोशिएटर्स और मीडिएटर को सारों को बैक स्टोरी पता है डिस्प्यूट किया. देन अब आ जाएगी रिक्वेस्टिंग पार्टी. अब इसके अंदर आएगी उसकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन. अब मैंने लेट्स से कोई हमारा जब डिस्प्यूट हुआ है तो मेरी साइड ऑफ द पिक्चर होगा कुछ, मेरी अपनी रिजर्वेशंस होंगी, अपनी रिमार्क्स होंगी, अपनी फीलिंग्स होंगी अबाउट द वे आई एक्टेड. एसन की उसकी साइड की स्टोरी होगी, क्यों उसने क्या कहा, क्यों का, उसकी क्या रीजनिंग थी. मैं कहता हूँ लेट्स हैव दिस वन स्पीकर, एसन सेज लेट्स हैव दिस अदर स्पीकर. मेरी अपनी रीजनिंग है स्पीकर को क्यों बुलाना है, एसन की अपनी रीजनिंग है उसको क्यों बुलाना है. ठीक है, क्या मुझे इन रियल लाइफ पता होगा कि एसन की क्या वो है? नहीं पता होगा. क्या एसन को पता होगा मेरी क्या रीजनिंग थी, मैं क्यों कह रहा था कि यार इसको बताओ? नहीं पता होगा, अनलेस आई कम्युनिकेट टू हिम. तो उसकी साइड ऑफ द पिक्चर उसकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होगी, मेरी साइड ऑफ द स्टोरी मेरी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होगी. अब
रिक्वेस्टिंग पार्टी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टिंग पार्टी को मिल जाएगी, रिस्पॉन्डिंग पार्टी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन उनको मिल जाएगी। तो उनको दो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं नेगोशिएटर्स को, एक जनरल इंफॉर्मेशन के बैकग्राउंड क्या है डिस्प्यूट का, एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कि आपकी साइड ऑफ द स्टोरी क्या है, आपकी क्या स्टोरी है, आपके साथ क्या हुआ, व्हाई डिड यू बिहेव दैट वे, क्या मसला हुआ, व्हाट इज योर टेक ऑन द सिचुएशन। एक रिस्पॉन्डिंग पार्टी की होगी कि आपके साथ क्या हुआ। अब अगर मीडिएटर होगा उसमें, तो मीडिएटर को कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं मिलती पार्टीज की। क्यों? क्योंकि रियल लाइफ में सोचो ना, मीडिएटर को क्या पता होगा दोनों पार्टी मैंने क्यों कैसे एक्ट किया, वो जब तक पूछेगा नहीं मेरे से उसको नहीं पता लगेगा रियल लाइफ में। तो मीडिएशन में भी ऐसा ही होगा, कॉम्पिटिशन में वो हमसे सवाल पूछेगा तो उसको पता होगा कि मैंने क्या किया कैसे किया। इसी तरह मैं एसन से पूछूंगा वहां जाके, मैं उससे सवाल करूंगा बेस्ड ऑन द जनरल इन्फॉर्मेशन, जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है कि एसन व्हाई डिड यू डू दिस, एसन मेरे से पूछेगा गुलाम व्हाई डिड यू डू दिस, एंड बेस्ड ऑन दैट कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मैं उसको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो बेसिकली एक पूरा स्टोरी है, दो स्टोरीज की साइड, तीन साइड्स हैं, एक जनरल, एक एसन की, एक मेरी, एसन की उसके पास है, मेरी मेरे पास है, और एक बैकग्राउंड जो सारों के पास है। एंड देन हम आके रियल लाइफ की तरह नेगोशिएट करेंगे, बैठेंगे, डिस्कशन करेंगे, सवाल पूछेंगे एक दूसरे से। कैसे करेंगे उसके ऊपर आते हैं आगे। अच्छा, तो नेगोशिएटिंग टीम्स जो होंगी बेस्ड ऑन द जनरल इंफॉर्मेशन, द बैकग्राउंड of the story and their side of the picture, which is the confidential information, they will try to discuss the problem with the other side and try to find a mutually beneficial solution. अगर मीडिएटर है उसमें तो उन पार्टीज को असिस्ट करेगा इन क्लैरिफाइंग द इश्यूज, और जो मीडिएटर का रोल होता है which I won't dive deep into now। अब फेजेस क्या होते हैं कंपटीशन में। टीम्स को जनरल इंफॉर्मेशन मिल जाती है महीना पहले। आपने आज साइन अप किया कंपटीशन में, सितंबर में कंपटीशन है, आपको आज कॉन्फिडेंस जनरल इन्फॉर्मेशन मिल गई सारों को, पढ़ें। अब आपका कोच बताएगा उसको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, उसकी क्या एप्लीकेशन होती है। देन राउंड से एक घंटा पहले आपको 2 पेजेस की या 1 पेजेस की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि आपका स्टांस क्या है, आपकी साइड ऑफ द स्टोरी क्या है। आप प्रिपेयर करते हैं, अपनी नेगोशिएशन स्ट्रेटेजी बनाते हैं, अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट बनाते हैं, क्या कहना है मैंने, कब क्या बोलना है, क्या ऑफर करना है, क्या नहीं ऑफर करना, क्या पूछना है दूसरी साइड से। ठीक है, उसमें लिखा होता है क्या पूछना है। मेरी में लिखा होगा कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन में मैंने एसन से क्या पूछना है, एसन की में लिखा होगा उसने मेरे से क्या पूछना है। फिर हम जाएंगे मीडिएशन में, जहां से अब हमारा सेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब स्टार्ट में क्या होगा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन होंगी। अगर मीडिएशन कॉम्पिटिशन है तो मीडिएटर पहले आएगा और फिर पार्टीज अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगी। तो क्लाइंट रिक्वेस्टिंग पार्टी का करेगा, फिर उसकी काउंसिल करेगी, अपने आप को इंट्रोड्यूस, नाम बताएंगे। फिर रिस्पॉन्डिंग पार्टी का क्लाइंट करेगा, अपना नाम बताएगा, रिस्पॉन्डिंग पार्टी का काउंसिल करेगा। फिर होती है ओपनिंग स्टेटमेंट। ओपनिंग स्टेटमेंट में क्या होता है, मीडिएटर पार्टीज को एक्सप्लेन करता है कि मीडिएटर करेगा क्या आज आके, कैसे हेल्प करेगा उनको। फिर पार्टीज बताती हैं। तो मेरी जब ओपनिंग स्टेटमेंट की बारी आएगी, मैं बताऊंगा व्हाट इज माय साइड ऑफ द पिक्चर, व्हाट इज माय स्टांस, ब्रीफली 1 से 2 मिनट में मैं बताऊंगा माय हाउ एम आई एग्रीव्ड। फिर मेरी काउंसिल बताएगी, फिर एसन की बारी आएगी, फिर एसन की काउंसिल बताएगी। जब हम सारे अपना 1 से 2 मिनट का बता दें कि हम कैसे आए हैं, क्या मसला हुआ है, उसके बाद फिर एजेंडा सेटिंग होगी। एजेंडा सेटिंग में क्या होता है, मैं कहूंगा जी मैं आज 2 बातें करना चाहता हूँ ऐसे, who should be the speaker and what should be the dates of the workshop। ऐसे कहते हैं yes गुलाम, these are the 2 things I want to talk about, but मैं एक और चीज डिस्कस करना चाहता हूँ, what would be the length of the session। मैं कहूंगा ठीक है, हम 3 चीजें डिस्कस करेंगे आज। एक, what would be the role, स्पीकर कौन होगा, क्या उसका रोल होगा, एंड देन टाइमिंग क्या होगी वर्कशॉप की। हमने इन 3 चीजों पे बात करनी है, हमने लिख लेंगे वहां पे और हम फिर उन बारे में बात करना शुरू कर देंगे। फिर शुरू हो जाता है एक्सप्लोरेशन सेशन। एक्सप्लोरेशन सेशन में क्या करते हैं, लेट्स से हमने पहला एजेंडा टॉपिक उठा लिया कि हु शुड बी द स्पीकर। अब याद करें डिस्प्यूट क्या है, एसन का अपना स्टांस है, मेरा अपना स्टांस है। नाउ मैं एसन से पूछता हूँ यार व्हाई दिस पर्सन। एसन टेल्स मी हिज साइड ऑफ द स्टोरी अपने कॉन्फिडेंशियल्स में से। एसन आस्क्स मी गुलाम मैंने अपना बता दिया, अब तुम बताओ व्हाई दिस स्पीकर। मैं अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन से उसको बता दूंगा, तो मुझे उसका स्टांस पता लग जाएगा, उसको मेरा पता लग जाएगा। एंड देन हम बैक एंड फोर्थ एक दूसरे से क्वेश्चन पूछेंगे, क्लैरिफिकेशंस लेंगे। यही होता है ना नेगोशिएशन में, मीडिएशन में, क्लैरिफाई
करते हैं आप, जो आपको वैसे डिस्कशन करने का मौका नहीं मिलता, वो आप वहाँ बैठ के करते हैं टेबल पे। हम एक दूसरे से क्लैरिफाई करेंगे चीजें, क्वेश्चंस पूछेंगे, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन होगी। फिर बेस्ड ऑन दोस क्वेश्चंस हम एक दूसरे को ऑफर्स करेंगे, एक दूसरे से मैं देखूंगा कि क्या मैं चीज गिव अप करना चाहता हूँ, क्या ऐसे देखेगा क्या वो गिव अप करना चाहते हैं, क्या हम एक दूसरे को ऑफर कर सकते हैं। ऑफर्स होंगी, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन होगी, एक्सचेंज करेंगे ऑफर्स, एंड देन सेशन एंड हो जाएगा, क्लोजिंग रिमार्क्स हमारे जो होंगे हम वो देंगे, खत्म हो गया आपका मीडिएशन नेगोशिएशन सेशन। फिर उसके बाद क्या होगा, आपको जो आपके जजेस हैं वो फीडबैक देंगे कि आपने क्या सही किया, क्या सही नहीं किया, आपको क्या सवाल किस टाइम पूछना चाहिए था, क्या चीज किस टाइम पूछनी चाहिए थी, किस चीज को आपने गलत फ्रेज किया, किस चीज को आपने जल्दी गिव अप कर दिया, किस चीज को आपको गिव अप नहीं करना था, वो आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताएंगे। एज नेगोशिएटर मीडिएटर को भी स्ट्रेटेजी बताएंगे कि आपने किस वक्त क्या गलती की है, क्या गलती नहीं की। अब आ जाते हैं कॉम्पिटिशन पे। कौन कौन से कॉम्पिटिशन हैं? बहुत ज्यादा कंपटीशन है। अगर एक यूनिवर्सिटी मतलब एक 500 बच्चे का बैच है ना, तो इतने कंपटीशन आते हैं हर साल में कि वो 500 बच्चे का बैच, हर बच्चा नए कंपटीशन में जा सकता है, प्रोवाइडेड यू डोंट रिपीट द स्टूडेंट। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिशन है उनकी मैंने लिस्ट बना दी है। मीडिएशन और नेगोशिएशन कॉम्पिटिशन कौन से हैं? वो ये सारे हैं। सबसे मेरा फेवरेट, सबसे मेरा प्रेफर्ड वन है IBA वायाक CDRC वियना मीडिएशन एंड नेगोशिएशन कॉम्पिटिशन। अब आप में से जो बच्चे सिंध में से हैं उनको पर्टिकुलरली पता होगा, जस्टिस जवाद सरवाना, he was recently elevated to the Sindh High Court. He is one of the founders of the IBA वायाक CDRC वियना मीडिएशन कॉम्पिटिशन। वियना में होता है हर साल। एप्लीकेशन की 15 नवंबर को खुली थी लास्ट ईयर, 31 जनवरी को खत्म हुई थी, 5 से 10 जुलाई को कंपटीशन हुआ था वियना में। फिर बाकी कंपटीशन है, मीडिएट गुरु का है, ऑनलाइन होता है। SK मिश्रा कंपटीशन है, ये भी ऑनलाइन होता है। एपकैम का कंपटीशन है, ऑनलाइन होता है। ठीक है, तो देयर इज मल्टीपल कंपटीशन जो ऑनलाइन होते हैं, कुछ ऑफलाइन होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू वेदर यू वांट टू पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन वन या ऑफलाइन वन। IIMC कोलंबो होता है, श्रीलंका में होता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर पाकिस्तान में अभी तक कोई कंपटीशन नहीं होता, बट होपफुली sometime soon, maybe we'll be the first ones to bring that to you. We'll see. Now, negotiation competition, ये वो कॉम्पिटिशन हैं जहां पे सिर्फ नेगोशिएशन होती है या मीडिएटर नहीं होता। पहले कौन से थे? जहां पे मीडिएटर टीम्स भी होती हैं स्टूडेंट्स की और नेगोशिएटर टीम्स भी स्टूडेंट्स की होती हैं। सेकंड कौन से हैं? जहां पे दोनों ही टीम्स नेगोशिएशन की होती हैं, मीडिएटर नहीं होता, सिर्फ नेगोशिएशन होती है, दोनों साइड से स्टूडेंट्स आते हैं। तो इसमें द नेगोशिएशन चैलेंज है, इसके प्रिलिमिनरी राउंड्स ऑनलाइन होते हैं, बाकी राउंड्स इन पर्सन होते हैं। ADR ODR का नेगोशिएशन कंपटीशन है, दुबई में होता है हर साल। एपिट लॉ स्कूल का कंपटीशन है, हाइब्रिड होता है, कोलंबो श्रीलंका में होता है, साथ में इसके ऑनलाइन राउंड्स भी होते हैं इफ यू वांट टू पार्टिसिपेट रिमोटली। डेट्स मैंने इनकी इस साल की लिख दी हैं। फिर आ जाते हैं नेगोशिएशन कॉम्पिटिशन जिसके अंदर मीडिएटर प्रोफेशनल होता है, मतलब होता मीडिएशन कॉम्पिटिशन है लेकिन उसके अंदर बच्चे एज नेगोशिएटर्स पार्टिसिपेट करते हैं, बच्चों को मीडिएटर बनने का मौका नहीं मिलता। तो उसके अंदर सबसे जो टॉप का कंपटीशन है दैट इज ICC पेरिस मीडिएशन कंपटीशन। पेरिस में होता है, फ्रांस में होता है। इसकी भी एप्लीकेशंस खुली हुई हैं, एनीवन ऑफ यू वांट टू अप्लाई, ट्राई देयर लक। फिर होता है एशिया पैसिफिक कमर्शियल मीडिएशन कंपटीशन, ऑनलाइन होता है। बुसेरियस मीडिएशन कंपटीशन होता है, हैम्बर्ग जर्मनी में होता है, और साथ इसका हाइब्रिड वर्जन भी होता है। यू कैन पार्टिसिपेट ईदर इन जर्मनी और ऑनलाइन। ये सारी स्लाइड्स आप लोगों को मिल जाएंगी, मैंने इनके डेडलाइंस लिखी हुई हैं, कुछ की इस साल की लिख दी हैं। आई होप माई वॉइस इज अ बिट क्लियर, आई स्पीक अ बिट लाउडर नाउ। कुछ की मैंने इस साल की डेडलाइंस लिख दी हैं, कुछ की पिछले साल की डेडलाइंस लिख दी हैं, किस टाइम कौन सा कंपटीशन हुआ था, क्या डेट्स थी उसकी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, फिर बात आती है कि अप्लाई कैसे करना है इन कॉम्पिटिशन में। भाई सीधा प्रोसीजर होता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने फॉर्म फिल करना है, आई वांट टू अप्लाई इन द कंपटीशन एंड वेट, फॉर्म अ टीम, अप्लाई एंड वेट। इफ यू गेट अप्रूव्ड यू पार्टिसिपेट। बट दो कॉम्पिटिशन्स हैं जिनके अंदर इतना इजी क्राइटेरिया नहीं है, वो है ICC पेरिस और CDRC वियना। अब CDRC वियना का मैं क्योंकि सेक्रेटेरिएट का मेंबर हूं, सो आई कैन गिव यू सम इनसाइट ऑन दैट एज वेल विदाउट ब्रीचिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ कोर्स। बट ICC पेरिस की पहले बात कर लेते हैं। ICC पेरिस जो है ना,
उसके अंदर पार्टिसिपेशन के लिए सिलेक्ट ही हो जाना बड़ी अचीवमेंट होती है। 48 टीम्स आती हैं वर्ल्ड वाइड, और अगर आप सिलेक्ट हो जाओ तो वही बड़ी अचीवमेंट होती है, जीतना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, इसके अंदर क्या मैटर करता है, आपकी प्रोफाइल मैटर करती है, आपका क्या एक्सपीरियंस है। तो आप में से जिस जिस बंदे ने ये वर्कशॉप अटेंड की है, जरूर इसका सर्टिफिकेट के लिए आप लोग कीजिएगा, बिकॉज दिस स्पेसिफिकली आस्क यू, आपने कौन कौन सी मीडिएशन एंड नेगोशिएशन की वर्कशॉप अटेंड की है, आपने कौन सी ट्रेनिंग ली है। तो दीज वर्कशॉप दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे माइट बी द मेक और ब्रेक फॉर यू, ठीक है, दैट कॉम्पिटिशन। ये जो है इसके अंदर आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है, आपने और कौन से कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है। इनका एक रूल है जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, वो कहते हैं कि जी 10 स्पॉट हम उन यूनिवर्सिटीज के लिए रिजर्व रखेंगे आउट ऑफ 48 जिन्होंने कभी पहले पार्टिसिपेट नहीं किया इस कंपटीशन में। तो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज मतलब पार्टिसिपेट क्या करना, पाकिस्तान से मेरे ख्याल से आज तक आईसीसी पेरिस कभी टीम गई ही नहीं होगी, ठीक है, पूरे पाकिस्तान से यूनिवर्सिटी रिपीट होना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, I'm literally screaming right now. Khansa, can you hear me properly? There's some comments. Yes, I can hear you properly and clearly. लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा की तरफ से ये इशू है, और YouTube पर भी कोई कमेंट्स आ रही है, जबकि मैं आपको बिल्कुल क्लियरली सुन सकती हूँ। Just a second. हंसा की वॉइस मुझे बिल्कुल क्लियर आ रही है, बट आपकी वॉइस बहुत लो किस्म की ना, तो आई अभी लाइक बेहतर है? नहीं सेम। एक मिनट। आई थिंक आपके जो ऑडियो है ना वो कनेक्ट है आपके वेबकैम का, मे बी उसको चेक करें और माइक में जा अभी बेहतर है? इज इट बेटर नाउ? क्वाइट Yes, बेटर। ओके, थोड़ी सी तेज हुई है। चलो सेकंड आता है सीडीआरसी वियना। आई होप इट्स बेटर नाउ, इज इट? परफेक्ट। अच्छा, सीडीआरसी वियना, सीडीआरसी वियना के अंदर बहुत स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया होता है अगेन, क्योंकि इसके अंदर सिलेक्ट ही हो जाना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। क्या क्राइटेरिया होता है? बेसिक एप्लीकेशन होती है, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं आईसीसी पेरिस की तरह, ऑन योर प्रायर एक्सपीरियंस। और इसके अंदर एक डिफरेंट एलिमेंट होता है, वो ये होता है कि व्हाई यू शुड बी सिलेक्टेड। उसके लिए आपने एज नेगोशिएटर 2 मिनट की वीडियो बनानी होती है, एज मीडिएटर आपने 1 मिनट की वीडियो बनानी होती है, व्हाई यू शुड बी सिलेक्टेड, व्हाई डू यू वांट टू पार्टिसिपेट। फिर आपका प्रायर एक्सपीरियंस, प्रायर एंगेजमेंट, आपकी आईसीसी पेरिस तो ये भी देखता है कि आपकी यूनिवर्सिटी का करिकुलम में एडीआर है या नहीं है, सो वो भी रेलेवेंट होता है उसके लिए। सीडीआरसी में रेलेवेंट नहीं होता। दोनों में फर्क क्या है? दोनों कॉम्पिटिशन्स अपने लीडर कॉम्पिटिशन है अपनी फील्ड में। पेरिस में क्या होता है, आपको मीडिएशन करने का मौका नहीं मिलता, आप खाली एज नेगोशिएटर जाते हो इन मीडिएशन, मीडिएटर क्योंकि वहां प्रोफेशनल होता है। सीडीआरसी वियना में मीडिएटर भी स्टूडेंट होता है, नेगोशिएटर भी स्टूडेंट होता है, ठीक है, तो वो जरा ज्यादा आपको एक्सपोजर मिलता है वहां पे। सीडीआरसी में क्या चीज रेलेवेंट होती है? उसके अंदर जो टीम है सीडीआरसी की, वो ट्राई करती है कि एक्सेसिबल बनाए नई टीम्स के लिए और नई यूनिवर्सिटीज के लिए, और डाइवर्सिफाई करे उन यूनिवर्सिटीज को, उन कंट्रीज की पार्टिसिपेशन जिन्होंने पहले कभी पार्टिसिपेट नहीं किया। फॉर एग्जांपल इस साल हमारी इराक की टीम आई थी, ईरान की टीम थी। सो वहां पे मीडिएशन नेगोशिएशन का इतना नहीं है ज्यादा इस वक्त फोकस या बच्चों की एक्सपर्टीज, लेकिन टीम्स आई थी एंड वो सिलेक्ट भी हुई थी। तो पाकिस्तान से टीम जाएगी तो क्यों नहीं सिलेक्ट होगी? कोई अप्लाई करेगा तो सिलेक्ट होगा ना, हम अप्लाई नहीं करते। सो आई होप दिस विल एक्ट एज अ स्टेपिंग स्टोन फॉर यू टू गो एंड अप्लाई। फिर टू सम ऑफ द क्राइटेरिया, प्रायर मीडिएशन एंड नेगोशिएशन ट्रेनिंग एक्सपीरियंस मैटर करता है, जो प्रायर कंपटीशन एक्सपीरियंस मैटर करता है, व्हाट डज द कंपटीशन मीन टू यू मैटर करता है, और व्हाई डू यू वांट टू पार्टिसिपेट मैटर। रजिस्ट्रेशन फीस का एक क्वेश्चन है, ये वेरी करता है। सीडीआरसी के अंदर रजिस्ट्रेशन फी 500 से 600 यूरो तक जाती है, लेकिन वो 5 से 6 बंदों की टीम होती है, 4 बंदों की टीम होती है, उनकी फी होती है, तो वो डिवाइड हो जाती है। कुछ कॉम्पिटिशन हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको कुछ ऑनलाइन कॉम्पिटिशन बताए हैं, जैसे ये मीडिएट गुरु है, इसकी $50 फीस है। आ जाके मेरे ख्याल से 10-10,500 बनता है। अगर 5 बच्चों की, 4 बच्चों की टीम है, तो 2,500 पर बच्चा आ जाएगा वो। एसके मिश्रा की भी तकरीबन इतनी फीस है, आप कैम की भी तकरीबन इतनी फीस है। वियना वाले की, सीडीआरसी की और पेरिस वाले की, आईसीसी की, इनकी फीस जरा होती है अच्छी, ठीक है, मतलब 500-700 यूरो होती है, इससे ऊपर नहीं होती।
सबसे जो महंगा आज तक का कंपटीशन है वो भी मैं बता देता हूँ, वो एशिया पैसिफिक कमर्शियल मीडिएशन कंपटीशन है। इसकी $1000 फीस है। इसलिए मैं जनरली बच्चों को रिकमेंड नहीं करता कि इसमें पार्टिसिपेट करें, बट कंपटीशन बहुत अच्छा है। इट इज वन ऑफ द टॉप नॉच कॉम्पिटिशन्स एंड इट इज बेसिकली आईसीसी पेरिस बट ऑनलाइन। ठीक है, सो इट्स वेरी, बच्चों को बहुत सीखने को मौका मिलता है। अच्छा, फिर अब इसमें फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चंस आ जाते हैं फाइनेंसेस। अब किसी ने पूछा रजिस्ट्रेशन फी अफोर्डेबल है या नहीं। रजिस्ट्रेशन फी जनरली पूरी दुनिया में यूनिवर्सिटी पे करती है। एंड मैं पता है क्या कहता हूँ स्टूडेंट्स को, मैं कहता हूँ अगर आपकी यूनिवर्सिटी पे करती है ना रजिस्ट्रेशन फी, और आप कोई ट्रॉफी जीत के आते हो तो यूनिवर्सिटी को देना। अगर यूनिवर्सिटी नहीं पे करती तो यूनिवर्सिटी को ट्रॉफी भी मत देना। if they don't support you, don't give back to them. So generally universities registration fee तो हर यूनिवर्सिटी पे करे, अगर नहीं करे तो मत दें। नाउ स्पॉन्सर्स होते हैं, लॉ फर्म्स रीच आउट टू पीपल। लॉ फर्म्स को रीच आउट करें, एरिया सेंटर्स आए हैं पाकिस्तान में बहुत ज्यादा, उनको रीच आउट करें। सेल्फ फंड भी कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि सेल्फ फंड करें। मैं हमेशा कहता हूँ बच्चे सेल्फ फंड करें, कुछ बच्चे कहते हैं कि मुश्किल होता है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ यार फिर भी करो। उसकी रीजन है, जब आप सेल्फ फंड करते हो ना, जब आपकी जेब से पैसे लगे होते हैं, तब आप ज्यादा मेहनत करते हो। तब आपको पता है कि यार मैंने इन्वेस्टमेंट किया, मैंने कुछ लेके आना। फॉर एग्जाम्पल you'll meet Kritika tomorrow, who's in the next session. She is going to cover international commercial arbitration. टीम्स गई थी इंडिया से बहुत ज्यादा विज मूट में, एंड उन्होंने, अक्सर टीम थी जिनको सारी फंडिंग हुई हुई थी, मतलब उनका एक एक जिन्होंने खाना भी खाया उनका फंडेड था, एंड वो टॉप 100 टीम्स में भी नहीं आई। एंड देन कृतिका की टीम थी जिन्होंने एक एक पैसा अपनी जेब से लगाया था, एंड वो नंबर 15 पे आउट ऑफ 374 टीम्स वर्ल्ड वाइड। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि यार हमने अपनी जेब से जब 10 लाख रुपया लगाया है तो हमने इसको हलाल करना। वी नीड टू गेट दैट सॉर्ट ऑफ बैक, लाइक द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अच्छा, फिर वीजा की बात आ जाती है। जो कंपटीशन इंटरनेशनल है, इसमें आपको जो कंपटीशन होस्ट हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो इनविटेशन लेटर भेजते हैं। ऑफ कोर्स वो आपको समवट असिस्ट भी करते हैं इन द वीजा प्रोसेस। सीडीआरसी में जैसे हमने इस साल, मेरे ख्याल से, मतलब जितना हमने बच्चों को वीजा के लिए पारी काटी है ना सीडीआरसी में, आप लोगों की सोच है एम्बेसीज को कांटेक्ट करना, ईमेल्स करना, ऑल दोस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, बहुत ज्यादा वी सपोर्ट स्टूडेंट्स देयर। अच्छा, फिर क्वेश्चन आता है कि हाउ डू वी नो व्हाट टू डू एंड हाउ टू पार्टिसिपेट। कि अच्छा यार गुलाम मोहम्मद बता तो दिया है सारी बात, अब हम करें क्या। सबसे पहली चीज है फॉर्म अ टीम। स्टूडेंट से पूछें यार कोई करना चाहता है नेगोशिएशन कंपटीशन में पार्टिसिपेट, व्हाट टू डू। ठीक है, 3 से 4 बंदों की टीम बनाए, मिनिमम 2, मैक्सिमम 4 और बियॉन्ड। फिर कंपटीशन चूज करें कौन से में पार्टिसिपेट करना। फिर यूनिवर्सिटी से परमिशन लें। यू नीड अ लेटर फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी के दे आर ओके विद यू पार्टिसिपेटिंग। रजिस्टर करें कंपटीशन के लिए, फिल करें। इफ यू गेट सिलेक्टेड, पे द रजिस्ट्रेशन फी which varies from competition to competition. Then get a coach. This is indispensable. Reach out to people on LinkedIn. Reach out to people on Instagram. ठीक है, जो आपको मिलता है रीच आउट करें। अगर उसने एक भी कंपटीशन किया, उसको कुछ तो तजर्बा होगा ना। बिल्ड ऑन द शोल्डर्स ऑफ दोज हु केम बिफोर यू। चाहे उसने एक कंपटीशन किया, चाहे उसने 150 कॉम्पिटिशन की। In that situation, although at times I might not be available to fully coach a team, but if any one of you decide कि यार हमने कोई ADR competition करना है, I will graciously give each, like every team, one session on what to do and what not to do. So if you decide to take part, I'll be your first contact. I will be privileged to have that honor कि you guys reach out to me and I give you one session free of cost to tell you कि यार क्या करना है competition, and then get a coach because I cannot coach all the team. Now, then what I would suggest कि ट्रेनिंग करें नेगोशिएशंस और मीडिएशन में। अगर आपने आईसीसी पेरिस या सीडीआरसी टाइप कंपटीशन में जाना है, हो सकता है बगैर ट्रेनिंग के भी हो जाए, बिकॉज यू आर वेरी फर्स्ट टीम फ्रॉम पाकिस्तान एंड दे वांट टू एनकरेज मोर टीम्स फ्रॉम द कंट्री। ठीक है, फिर कॉम्पिटिशन्स की वीडियोस देखें ऑनलाइन, यूट्यूब पे जाएं। कोई ऐसी दुनिया की चीज नहीं है जो आप यूट्यूब से नहीं सीख सकते। मैं जब कोच करता हूँ, मैं आधा टाइम बच्चों को यूट्यूब से वीडियोस दिखाता हूँ। जाएं वीडियोस देखें क्या होता है कंपटीशन में, कैसे होता है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑनलाइन एज वॉलंटियर या सेशन सुपरवाइजर पार्टिसिपेट करें। सीडीआरसी में भी, आईसीसी पेरिस में भी, और जितने कॉम्पिटिशन्स हैं
इन सारे कॉम्पिटिशन्स में बैकएंड पे टीम काम कर रही होती है। जब सीडीआरसी इस साल हुआ था, मैं 4 दिन तक सोया नहीं था। लास्ट ईयर मैंने 4 स्क्रीन लगाई हुई थी अपने घर से बैठ के, तब भी मैं 4 दिन नहीं सोया था, क्योंकि काम ही इतना होता है। ठीक है, ऑल्दो वी हैव अ बिग टीम, लेकिन हर बंदा इतना ऑक्यूपाइड होता है। सो कम इन, पार्टिसिपेट एज अ वॉलंटियर। उससे क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि जब आप बैठे हो एज अ सेशन सुपरवाइजर, आप असिस्ट कर रहे हो उनको इन होस्टिंग द सेशन, तो सामने जब सेशन हो रहा होगा ना, तो आप फॉलो कर रहे होगे, आप सुन रहे होगे बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। उससे बड़ी लर्निंग होती है। फिर जजेस फीडबैक देंगे, आप वो सुनोगे, उससे बहुत लर्निंग होती है। सो ऑब्जर्व करके, जैसे हम लिटिगेशन में जब करियर में स्टेप इन करते हैं लॉयर्स, हम जाते हैं ना 6 महीने, क्या करते हैं? कोर्ट जाके बस बैठ के देखते ही हैं, प्रेजेंट तो नहीं कर सकते ना, ऑब्जर्व करते हैं, लर्न बाय ऑब्जर्विंग। तो यहाँ पे भी पार्टिसिपेट एज अ वॉलंटियर एंड लर्न बाय ऑब्जर्विंग, एंड देन पार्टिस अप्लाई। रिजेक्ट होती है एप्लीकेशन, सो व्हाट, गो एंड अप्लाई, take that leap of faith. So I would encourage each one of you कि if you can go on and apply to ICC Paris, CDRC की applications खुलेंगी कुछ महीनों तक, apply there. How can you volunteer? हर competition की different deadlines होती हैं। जितने competitions आपको ये slide मिल जाएगी ग्रुप के अंदर, इन सारे कॉम्पिटिशन्स की लिस्ट बना के रख लें, इन सारों के लिंक्स बना के खोल लें, उनके पेजेस पे जाके देखें कौन सा कॉम्पिटिशन वॉलंटियर्स अप्लाई करता है, मांगता है। सीडीआरसी मांगता है वॉलंटियर्स, ऑनलाइन वॉलंटियर्स। इवन इफ यू कांट ट्रैवल टू वियना, वी हैव वॉलंटियर्स जिन्होंने अपने घर से बैठ के काम किया है। जो ऑनलाइन कॉम्पिटिशन है वो तो है ही ऑनलाइन, तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, एपकैम जो है, IIMC कोलंबो जो है, यू कुड अप्लाई देयर एज वेल। एडीआर ओडीआर, बिकॉज हर चीज ऑन ऑन ग्राउंड नहीं होती ना। अब देखो, इट्स नॉट ऑलवेज कि आपको सेशन देखने का मौका मिले एज वॉलंटियर, बैकएंड का मौका भी मिले, आपको पता लगे स्कोर शीट्स कैसे होती हैं, आपको मौका मिले आप जजेस से इंटरेक्ट करो। अब मैंने सीडीआरसी के अंदर इस साल 90 जजेस को ईमेल किए पर्सनली सर्टिफिकेट्स, उनको मेरा नाम पता लग गया है ना, उनको पता लग गया दिस पर्सन एग्जिस्ट्स। कल को इफ दे मीट मी समवेयर, मेरा नेटवर्क बन गया, आई गॉट दैट एक्सपोजर। सो व्हेन इफ यू वर ऑन लाइक इन माय पोजीशन, अगर आपको छोटा सा टास्क मिलता है कि यार ये 90 सर्टिफिकेट्स है, 90 बंदे को ईमेल कर दो। 90 बंदे कौन? गॉड्स इन मीडिएशन, गॉड्स इन आर्बिट्रेशन, गॉड्स इन नेगोशिएशन। आप उनके साथ ईमेल पे आप उनको सर्टिफिकेट भेज रहे हो, तो इंटरेक्ट विद देम। तो फिर आपने नेक्स्ट ईयर लेट्स से उस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है, आप उसी बंदे को रीच आउट करते हो जिसको आपने लास्ट ईयर सर्टिफिकेट भेजा था एज अ वॉलंटियर। ही वुड नो यू, उसको पता होगा कि ये बच्चा सीरियस है, ये बच्चा एमी रैंडमली कोई उठ के नहीं आ गया, he is actually or they are actually serious about it and they want to participate in it. So that's then ट्रेनिंग्स हैं, एडीआर ओडीआर की ट्रेनिंग है, मैम सारा होस्ट कराती हैं। आई कैड्रिप है, मैम नुदरत वन ऑफ आवर स्पीकर्स इन द नेक्स्ट सेशंस, वो इस्लामाबाद में होस्ट कराती हैं। एडवर्ड्स मीडिएशन एकेडमी की ट्रेनिंग है, इंटरनेशनल मीडिएशन कैंपस की ट्रेनिंग है, मिक एडीआर की ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग्स भी कर सकते हैं आप टू फर्दर डिवेलप योर स्किल्स। बट अब एक सजेशन, इफ यू आर समवन हु इज गेटिंग स्टार्टेड, क्या करो? जितने ऑनलाइन कॉम्पिटिशन है ना, उनमें अप्लाई करो। मीडिएट गुरु में अप्लाई कर दो, SK मिश्रा में कर दो, एपकैम में कर दो, ठीक है, नेगोशिएशन चैलेंज में कर दो, एलसिंक में कर दो, एपिड लॉ स्कूल वाले में, बुस एक्सक्यूज मी, बुसेरियस में अप्लाई कर दो। अच्छा, ये ना करना अप्लाई कर दिया और सिलेक्ट हो गए तो पार्टिसिपेट नहीं किया। अगर अप्लाई कर रहे हो तो फिर सिलेक्ट होते तो पार्टिसिपेट भी करना, क्योंकि इफ यू बैक आउट तो फिर पूरी कंट्री का नाम बदनाम होता है, फिर पूरी कंट्री ब्लैक लिस्ट हो जाती है। तो डोंट टेक इट इजीली, अप्लाई करो, छोटे कॉम्पिटिशन से शुरू करो। आईसीसी पेरिस जब टीम ने जाना होता है ना, लेट्स से अगर 2024 चल रहा है और एक टीम आईसीसी पेरिस में पार्टिसिपेट करना चाह रही है, वो 2024 में तैयारी शुरू कर देगी 2025 नहीं 26 के आईसीसी पेरिस। टीम्स 2 साल पहले तैयारी शुरू करती हैं एप्लीकेशन के लिए आईसीसी पेरिस की। क्या करती हैं? वर्कशॉप्स अटेंड करती हैं, ट्रेनिंग्स अटेंड करती हैं, वॉलंटियर करती हैं, छोटे छोटे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करती हैं, एक्सपोजर गेन करती हैं, एंड देन अपना एक बड़ी अच्छी सी प्रोफाइल बना के वो आईसीसी पेरिस सेंड करती हैं, एक्सेप्ट हो जाती है। और जब आपकी इन कॉम्पिटिशन में सिलेक्ट हो जाती है, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि आईसीसी पेरिस में 300 टीम अप्लाई करती है, 200 टीम अप्लाई करती है, सीडीआरसी में भी लार्ज नंबर ऑफ टीम्स अप्लाई, और उसके अंदर से 28 नेगोशिएटर टीम जाती हैं एंड 14 मीडिएटर टीम जाती हैं। तो अब आप जाते हो, लेट्स यू गो टू अ लॉ फर्म एंड से यार हमें स्पॉन्सरशिप दे दो, टिकट के पैसे दे दो, वी वांट टू ट्रैवल टू वियना। वो पूछेंगे जी कौन सा कॉम्पिटिशन, आप कहोगे जी CDRC, they'll ask you have you been selected for CDRC and you'll say yes, we are one of the 20
8 negotiator teams have been selected, तो उनको पता लग जाएगा कि जी बच्चे सीरियस हैं, बच्चों के अंदर कोई स्किल है, they have actually qualified for it, so they will sponsor you for it. Mostly वो करते हैं. Now, any questions that you might have, please type it in the chat box. If any, I'll take the next 2 minutes to answer any questions. If not, then we'll conclude. Are there any questions, Hansa, Essen? I Yes, I believe think जो दो तीन that क्वेश्चंस was थे, a very wholesome session because या जो एक दो सवाल आए थे हमारे पास वो भी जो है आपने अपने ही लेक्चर के अंदर जो है उनको आंसर ऑलरेडी कर दिया। तो बट या एक दो क्वेश्चन जो है वो मैं अपनी तरफ से पूछना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक यू हैव सजेस्टेड कि जी आप जो है एज अ ऑर्गेनाइजर जो ऑनलाइन भी काम कर सकते हैं, तो क्या उससे पहले कोई बिफोर हैंड नॉलेज या Essen, I cannot hear you. I think you dropped out. Hansa, can you hear him? यस आई थिंक एसन वाज आस्किंग कि जैसे आपने कहा कि ऑनलाइन वॉलंटियर्स वगैरह के तौर पर अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए भी क्या नॉलेज पहले होनी चाहिए, मतलब क्या वो कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है उनके लिए एज अ वॉलंटियर अप्लाई करने के लिए भी? नहीं, जनरली नहीं, आपको ट्रेन करते हैं। हाँ, आपको ऑब्वियसली यू नीड टू हैव अ लैपटॉप, आपके पास अच्छा इंटरनेट हो, आपको बेसिक नॉलेज ऑफ वर्ड एंड एक्सेल होनी चाहिए, जूम की बेसिक नॉलेज हो। अगर नहीं भी होती तो भी इट्स फाइन, आपको ट्रेन किया जाता है। सीडीआरसी में मैं हर साल जो भी कोहॉर्ट आता है फॉर द लास्ट ईयर, मैं उनको ट्रेन करता हूँ वॉलंटियर्स को कि भाई व्हाट डू यू नीड टू डू, एंड जो भी मैंने उनको करवाना होता है टास्क, आई ट्रेन देम पहले एंड देन यू डू दैट। How do you find sponsorship? Reach out to law firms, reach out to ADR centers, reach out to international organizations. There's this organization by the name Arbitral Women. So Ma'am Sarah was encouraging females to come in more into these competitions. So एक arbitral woman जो है वो उनका एक criteria maybe perhaps 70% या 80%, अगर उस percentage number आपका टीम के अंदर females हैं तो वो आपको sponsorship के लिए कर देते हैं quite easily. Although it's not as easy, but let's say you have 10 members and out of those 7 are females, so they would graciously sponsor you. So बहुत organizations हैं, ढूंढें, go up on LinkedIn, use it to your good advantage and find those organizations. पाकिस्तान में KDR है, Legal Aid Society है, maybe they'll sponsor you. iCadRip है, go out, reach out to them. देखो, जाके ट्राई करोगे तो पता लगेगा ना स्पॉन्सरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। जो मिलता है, the worst you can hear is a no. Go out, reach out to these top tier law firms, maybe they will. So and then जरूरी नहीं है कि एक लॉ फर्म कहे जी मैं आपको टिकट दे दूंगी, चारों बच्चों की टिकट दे दूंगी। नो, यू से जी आप हमें कोई सपोर्ट भी दे सकते हैं, गिव इट टू अस। हो सकता है अब जब हम विजमूट के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते हैं, हम कहते हैं यार फॉर एग्जाम्पल मैं एक लॉ मूट में पार्टिसिपेट करूँ, मैं जाके कहूंगा यार आप पैसे नहीं दे सकते मुझे, लॉ साइड की एक्सेस दे दो। पैसे नहीं दे सकते, आप हमारा एक प्रैक्टिस राउंड कर दो। यू कैन नॉट स्पॉन्सर आर फुल फेयर, चलो आप एक काम करो, आप हमें अकोमोडेशन के पैसे दो। यू कांट फंड द एंटायर अकोमोडेशन, चलो 10% दे दो। सो वट एवर सपोर्ट यू कैन गेट, बूंद बूंद से जो है दरिया बनता है। सो वट एवर सपोर्ट, पाकिस्तान लॉ साइड की एक्सेस मिल रही है आपको, कोई वो कहते हैं जी हम आपको एक ट्रेनिंग दे देते हैं एडीआर के ऊपर, हम आपका एक मीडिएशन की वो आपको राउंड जज कर देते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो रीच आउट टू देम, डोंट बी शाय, मे बी जो ट्राई करेगा उसको ही मिलेगी। Any further questions, Kansa? Do you have anything you want to Yes, ask? I think the last question is there any fee for volunteers? YouTube से next question. No, क्या कोई फी no. होती है? Volunteers, वॉलंटियर्स तो होते ही, ऑब्वियसली नेम से पता never. चल रहा है। नहीं, वॉलंटियर्स, अच्छा मजे की बात, आईसीसी पेरिस जो है ना, वो वॉलंटियर्स जब बुलाता है वो उल्टा पे करता है। आईसीसी पेरिस 750 यूरो पर मंथ पे करता है, प्लस मील एक्सपेंसेस, प्लस ट्रैवल एक्सपेंसेस पार्शियली, इफ यू बी अ वॉलंटियर फॉर आईसीसी पेरिस मीडिएशन कॉम्पिटिशन। 6 महीने की इंटर्नशिप होती है, बट वो कैसे वो आपको क्यों बुलाएगा? ठीक है, 2000 बच्चा अप्लाई करता है, कब बुलाएगा? जब आपने ऐसी वर्कशॉप्स अटेंड की होंगी, जब आपने ट्रेनिंग्स की होंगी, जब आपने मीडिएशन कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया होगा। ठीक है, तो उसको आप एम बना लें, जाके लिखें आईसीसी पेरिस इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज ऑन गूगल, यू विल फाइंड द लिंक टू दैट, अप्लाई टू दैट एंड दे विल स्पॉन्सर योर वीजा, दे विल हेल्प यू आउट विद द मे बी वो आपको एयर टिकट के लिए भी शायद हेल्प आउट करते हैं।
लेकिन बाकी जो कॉम्पिटिशन्स हैं वो अगर पे नहीं भी करते तो वो आपको एक्सपोजर बहुत अच्छा देते हैं, विच इज ऑलवेज एक्सपोजर, वी वर्क फॉर दैट, बट दैट इज एक्चुअली गुड एक्सपोजर विच So डज that एक्चुअली means प्रूव। again ये हम कह सकते हैं कि अगर हमारा इस तरह का एक्सपीरियंस है ऐसे वर्कशॉप से रिलेटेड या कोई भी एडीआर से रिलेटेड, तो उन लोगों को प्रायोरिटी दी जाती है, वी कैन से दिस। ऑफ कोर्स यस। आपने आपने चाहे आपने लेट्स से अभी रिसेंटली वो पाकिस्तान इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स वीक हुआ था कराची में, यस। तो आप लिख दो कि जी अटेंडेड PIDW, लॉविट्स की वर्कशॉप आपने अटेंड की है, आपने कोई कहीं और किया है, कोर्स आपको प्रेफरेंस दी जाती है, and बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है एज अपोज टू समवन हु हैज नो एक्सपीरियंस देयर। एक क्वेश्चन आया है, कैन आई अप्लाई टू दिस कॉम्पिटिशन बीइंग अ फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट? यू कैन अप्लाई टू दिस कॉम्पिटिशन इवन इफ यू आर नॉट अ लॉ स्टूडेंट। ठीक है, मीडिएटर के रोल के लिए तो आप वैसे ही अप्लाई कर सकते हो, क्लाइंट के रोल के लिए देयर इज नो बार, इफ यू आर अ फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट और अ फर्स्ट ईयर साइकोलॉजी स्टूडेंट। हाँ, काउंसिल के रोल के लिए यू हैव टू बी अ लॉ स्टूडेंट, लेकिन डजंट मैटर वेदर यूर फर्स्ट ईयर और योर फाइनल ईयर, तो इट डजंट मैटर व्हाट ईयर यू आर इन, फर्स्ट ईयर में हो या 10th ईयर में हो, यू कैन अप्लाई। Listen, you had two questions, I think. Are those answered? Yes, I think एक तो आंसर हो गया है, that was कि like we have done a lot of, और जब हम करते थे तो इसको ऐसे ही करते थे like लर्निंग अपॉर्चुनिटी, बट व्हेन वी ग्रेजुएटेड तो उसके बाद हमें ये एज अ करियर अपॉर्चुनिटी भी इसको जो है देखने को, लाइक आई हैव वर्क विद एज अ, तो वो आई थिंक आपने जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं दे आर पेड, तो दीज आर दी अपॉर्चुनिटीज जो कि आपको इवन नेगोशिएशन या मीडिएशन वाले मूव में भी दे पे यू, मतलब इट्स अ करियर एज वेल, नॉट ओनली कि आप सीखने के लिए जा रहे हो। सेकंड थिंग जो मेरा सवाल बीच में इंटरनेट ड्रॉप हो गया था, दैट वाज लाइक अगर कोई बंदा ऑर्गेनाइजर के लिए अप्लाई कर रहा है तो वो भी अभी आंसर हो चुका है, लाइक दे नीड टू हैव सम एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली दे वुड बी प्रिफर्ड एज कम्पेयर टू दैट पर्सन जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं हो। तो आई जस्ट ऐड दीस टू क्वेश्चंस। अच्छा, उसमें जस्ट टू वेरी ब्रीफली ऐड टू दैट, एक बंदा जिसको एक्सपीरियंस उसको प्रेफर किया जाएगा ऑब्वियसली, बट पाकिस्तान को इस वक्त एज है इन मोस्ट इन कॉम्पिटिशन में, आज तक पाकिस्तान की कोई टीम नहीं गई, तो जब वो नाम देखते हैं ना तो कहते हैं यार नहीं आई, लेट्स गिव देम अपॉर्चुनिटी, लेट्स गिव देम द एक्सपीरियंस। एडीआर कम्युनिटी में ये बहुत है, एडीआर कम्युनिटी ब्रिंग्स यू अप। ठीक है, तो वो देखेंगे कि यार आज तक पाकिस्तान से टीम नहीं आई, दे विल गिव यू दैट अपॉर्चुनिटी टू गेन दैट एक्सपीरियंस। सो दिस इज द टाइम फॉर यू टू अप्लाई इवन इफ यू डोंट हैव एक्सपीरियंस। लेकिन बस ये ना करना कि अप्लाई कर दो, वो चूज कर लें, फिर आप जाओ ना, तो अगले साल वो कोई पाकिस्तानी टीम को नहीं बुलाएंगे। डोंट ruin it for the others, make way for the others. अच्छा, सो फॉर पाकिस्तान की डू यू रिमेम्बर कितनी टीम हो चुकी है या किसी ने रिसेंटली किया हो? यार पाकिस्तान की मैंने आज तक कोई टीम नहीं देखी किसी मीडिएशन और नेगोशिएशन कंपटीशन में, विच इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट। ठीक है, एक टीम है जिसने मुझे रिसेंटली रीच आउट किया, आई विल नेम द यूनिवर्सिटी वेरी हैप्पीली, एंड दैट्स फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी, एंड दे वांट टू पार्टिसिपेट इन this competition right here, Busserious mediation competition, and they wanted assistance regarding that. So although I'm not in a position where I can give them full-time coaching, but I'm just going to reach out to the girls today itself and offer them कि यार I'll do a session or two for you and help you कि कैसे करना है, and maybe set you up with a coach जो आपको help out कर दे। लेकिन आज तक मैंने मोस्टली competition में मैंने आज तक कोई negotiation mediation की टीम नहीं देखी, which is unfortunate। हम ADR कर रहे हैं लेकिन हम competition में नहीं जा रहे, पूरी दुनिया के लॉ स्कूल जा रहे हैं। So what kind of learning do I need to have to participate in the competition, and how can I gain experience? यार at this point वर्कशॉप्स अटेंड की हो, अगर आपने कोई मीडिएशन की ट्रेनिंग की है, आपने कोई नेगोशिएशन की ट्रेनिंग की है, आपने वॉलंटियर किया है कहीं पे, एनी एक्सपीरियंस जिसमें आप बता दो कि मुझे बेसिक निटिग्रिटीज पता है, अगर वो नहीं भी है still apply, maybe you'll get in because you're the very first student from Pakistan, they'll encourage you. Can I apply for the competition? I have 9 years experience as a jury member / mediator at the Dispute Resolution Council in Peshawar. Legal Luminary Hub. Sir, madam, I don't know. So, sir or madam, you are the ideal person जिसको competition में as a participant नहीं apply करना चाहिए, आपको as an expert apply करना चाहिए। आपका 9 साल का तजर्बा है अगर dispute
DRC के अंदर, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काउंसिल में पेशावर में, यू आर एन एसेट। आप एज एन एक्सपर्ट अप्लाई करें। आपके लिए क्या लर्निंग होगी, आपको बच्चों को देखने का मौका मिलेगा। मैं एज एन एक्सपर्ट, मैं कल भी एक कंपटीशन जज कर रहा हूँ, मैं परसों भी एक कंपटीशन जज कर रहा था रात को 3 बजे उठ के। क्यों? एक तो ये होता है कि वी गिव बैक टू द स्टूडेंट्स, नंबर 2 मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है यार स्टूडेंट्स से। यस, सॉरी मैडम। सो मुझे स्टूडेंट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कोई स्टूडेंट का कोई स्टाइल नेगोशिएशन का, किसी का कोई स्टाइल है, सो वहां से आपको बहुत चीजें सीखने को मिलती है। सो यू शुड अप्लाई एज एन एक्सपर्ट। तो जितने ये कॉम्पिटिशन्स हैं उनकी जजेस की भी जो है डेडलाइंस होती हैं, उसकी भी एप्लीकेशंस ओपन होती हैं। अप्लाई टू बी अ जज एंड जज द कॉम्पिटिशन। ठीक है, एंड आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, यू कैन से कि दिस इज माय फर्स्ट टाइम जजिंग अ कंपटीशन, सो आप मुझे एक राउंड को ऑब्जर्व करने दें कि कैसे काम करता है कंपटीशन, एंड देन नेक्स्ट राउंड में आई विल पार्टिसिपेट एज अ प्रॉपर जज, एंड दे विल ग्रेशियसली अलाउ यू दैट। सीडीआरसी में हमने इस साल ये बहुत किया है कि इफ यू आर अ फर्स्ट टाइमर टू सीडीआरसी अप्लाइंग एज अ जज, वी विल प्लेस यू ऑन द पैनल बट यू विल नॉट मार्क द टीम्स। आप बैठे पैनल में, आपको इज्जत देंगे, आप बैठे, आप सुने, आप एज एन एक्सपर्ट देखें, एंड देन कम बैक अगले राउंड में आप फुली पार्टिसिपेट करें, ताकि आप बच्चों के लिए, इफ यू डोंट हैव एक्सपीरियंस, तो आप बच्चों को नेगेटिवली इफेक्ट ना करें। सो गो ऑन, अप्लाई एज एन एक्सपर्ट, यू आर द आइडियल पर्सन फॉर दैट। इट इज एसन, यू विल बी क्वाइट सरप्राइज टू नो कि एक्सपर्ट्स भी नहीं देखे मैंने पाकिस्तान से। एक दफा मैंने एक एक्सपर्ट देखे थे पाकिस्तान से, सुहेल खोजा साहब, फ्रॉम कराची, फ्रॉम समवेयर अराउंड सिंध परहैप्स। उसके अलावा मैंने नहीं देखा कोई पाकिस्तानी एक्सपर्ट। So if you have 1800 cases, madam, you're the ideal person to apply. With that, I think there are no further questions. Thank you very much for listening. Thank you very much, Essen, once again. I will share these slides with everyone in the group. I'll share it with Essen. He'll share it in the group. Thank you very much for listening and bearing with me. And yeah, best of Thank you luck. so much, sir, for your time. It was also very good session. इसमें हमें खुद ही सवालों के जवाब भी मिल रहे थे कि भाई इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो दैट इज सम काइंड ऑफ अप्रोच जो कि स्पीकर को होनी चाहिए, बिकॉज एज अ स्पीकर वो ये नहीं देख रहे थे यार वी आर डिलीवरिंग, वो एज अ लिसनर भी खुद को जो है ना रखकर सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर ऑडियंस की तरफ से क्या जो है लाइक एक जनरल क्वेश्चन जो आ सकता है। So that was a very good approach from your side. We really appreciate it. Thank you for taking out your time and obviously leading us to executing this workshop. So thank you so much, sir. Inshallah, see you later someday. Thank you very much, Essen. Allah Hafiz.